أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. اچھا بھائی، پہلی جماعت کے کتنے ساتھی ہیں؟ پہلی جماعت جو چلی بوٹاس کی 9 ساتھی تھے، آگے 9. بھائی کون کون ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. 1 اور 2. باقی ساتھی نہیں ہے؟ بلایا نہیں؟ ساتھ میں لے کر آتے ہیں. یہ ہر سال کا ہے کہ پوری جماعت کارگزاری میں شریک رہنی چاہیے. اچھا، دوسری جماعت کہاں کی ہے؟ مہوا کی جماعت ہے بھائی؟ کہاں چلی؟ آپ لوگ کتنے تھے؟ 12 تھے. ابھی کتنے ہیں؟ 4 ساتھی. باقی کے 8 کہاں ہیں؟ 6 ہی آئے خالی. اجتماع گاہ میں ہے؟ 2 ہے، باقی 6 تو گھر پہ ہے. تو 2 کو تو بلا لیتے. آتے وہ آ رہے. چلو، تیسری جماعت یہ ہو گئی پہلے راؤنڈ کی 2 جماعت. اچھا، دوسرے راؤنڈ کی پہلی جماعت کون سی تھی؟ بوٹات کی. وہ کہاں چلی بوٹات میں؟ وہ کتنے ساتھی تھے؟ ابھی کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ. دیکھو ایسا ہونا چاہیے. یہ بوٹات کی دوسرے راؤنڈ کی پہلی جماعت جس میں 12 تھے، 11 اور 11 کے 11 موجود ہے. کون کون ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ. یہ امیر صاحب کی فکر بتلاتی ہے یا مقامی ساتھیوں کی فکر بتلاتی ہے کہ انہوں نے سب کو دعوت دی اور ماشاءاللہ سب ساتھی پہنچ گئے. چلو، دوسری جماعت مہوا کی کتنے ساتھی تھے؟ کتنے ہیں یہاں؟ کون کون ہے؟ ماشاءاللہ. واہ بھائی واہ. اور تیسری جماعت بھاؤ نگر کی، وہ کہاں چلی؟ بھاؤ نگر میں بھی زون ہے خطرہ. کتنے ساتھی ہیں؟ ابھی یہاں کتنے ہیں؟ کون کون ہے؟ ماشاءاللہ. چوتھی جماعت کہاں کی چلی؟ تراجا والے ہیں. کتنے ساتھی چلے؟ 8. یہاں کتنے ہیں؟ واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ. پانچویں جماعت کہاں کی چلی؟ سیہور کی. کتنے ساتھی تھے؟ 8 ساتھی تھے. یہاں کتنے ہیں؟ کون کون ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. 1 2 3 4 5 6 7. ماشاءاللہ. تو پہلی 2 جماعتوں نے کیا ایسا کیا ہے سب ساتھی اپنے نہیں ہے. دیکھو باقی کی 5 جماعتوں کے تمام ساتھی مکمل موجود ہیں. دونوں جماعت کی آپ کی ابتدائی جو پہلے راؤنڈ میں چلی نا، اس میں ساتھی کم ہے. اس کو آنا چاہیے. تھوڑے اور آگے بڑھ جاؤ نا. اچھا، آپ لوگوں کو سردی لگتی ہم تو ساؤتھ گجرات کے آئے، لیکن تم تو کٹھیا وڑ کے. ایک جماعت ابھی اللہ کے راستے میں گئی بیرون میں، اور گرمی بہت تھی. تو آپس میں ساتھیوں نے طے کیا کہ اپنے یہ کہنا شروع کرو کہ گرمی تو بالکل نہیں ہے، گرمی تو بالکل نہیں ہے. تو انہوں نے آپس کے اندر بھی اس کا تذکرہ شروع کیا کہ گرمی تو بالکل نہیں.
کوئی آ کر کہتا تھا کہ بہت گرمی ہے، بولے نہیں، گرمی بالکل نہیں. تو بولے واقعی میں اللہ پاک کا نظام یہ ہوا کہ ہم کو جو احساس تھا، ایک تو گرمی کا لگنا اور ایک گرمی کا احساس، بولے اللہ پاک نے گرمی کے احساس کو ختم کر دیا. ایسے آدمی سردی سردی بولتا رہے گا تو بولو جتنی ہے اس سے زیادہ لگے گی. ماشاءاللہ آپ لوگ کام کر کے آئے اور ایسی سردی میں کام کر کے آئے، یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اور ہماری دعوت کی محنت میں مجاہدہ مطلوب ہے کہ بے آدمی مجاہدہ کر کے اللہ کے دین کے تقاضے کو پورا کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے ہم تمام کو ہدایت کے 8 سبب بتلائے. قرآن پاک میں ہدایت کے ملنے کی کئی آیتیں ہیں. اس میں جو مشہور آیت ہے جس کو ہر آدمی پڑھتا ہے، والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے اللہ پاک ہم تمام کو ہدایت دیتے چلے جائیں گے. اور ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں. کس کے محتاج ہے بولو؟ اور اسی لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ پاک سے قبلے کی طرف متوجہ ہو کر نماز میں باوضو اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اچھا، دن بھر میں یہ دعا اللہ کے سامنے کتنی مرتبہ مانگتے ہیں؟ فجر کی کتنی رکعتیں؟ 4. ظہر کی 12 اور 4 16. عصر کی 8. 16 اور 8 24. مغرب کی 24 اور 7 31. اور عشاء کی 17 کے 9. 31 اور 17 کتنی ہوئی؟ 48 مرتبہ. اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. باقی جتنی دعائیں ہیں وہ مسنون ہے، اس کا مانگنا سنت ہے. اور سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے سے اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، تو یہ دعا کا مانگنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے. دن میں 48 مرتبہ ہم اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اس لیے کہ ہدایت ہماری سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہے. اور یہ آپ جو مجاہدہ کر کے آئے، یہ مجاہدے پر اللہ پاک کا سب سے بڑا انعام جو ملے گا وہ ہدایت ملے گی. اور جب ہدایت کا نور ملے گا تو اعمال کا نفع اور بدعمالی کا نقصان محسوس ہوگا. آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہوگا، زبان کی بول صحیح ہوں گے، کمائیوں کے نقشے صحیح ہوں گے، خرچ کرنے کی لائنیں صحیح ہوگی. اس کی آنکھوں کا دیکھنا دین بنے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی، ایک بیٹا اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ اٹھا کر دیکھے گا تو اللہ پاک اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھے اپنے ماں باپ کو، شفقت بھری نگاہ اٹھا کر 100 مرتبہ دیکھے، تو ہمارے نبی نے جواب میں فرمایا، اللہ 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. 10 دن کے اندر 100 مرتبہ دیکھیں گے تو کتنا حج کا ثواب ملے گا؟ ارے بولو، 1000. دنیا میں کوئی بڑا سے بڑا مالدار بھی 1000 مرتبہ حج کر سکتا ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہدایت کا نور ملے گا. اور ہم جو زونوں میں پیدل، درخت کے نیچے اور ٹینٹ میں اور لوگوں کے پیچھے دوڑ کر لوگوں کے کلمے کو صحیح کرا کر آئے،
یہ اللہ پاک کے نزدیک بہت بڑی قیمتی نعمت ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان قسم پرس انسانوں پر محنت کرنے سے اللہ پاک مغفرت عطا فرمائیں، اور ہم سب کی سب سے بڑی نیت یہ ہے کہ اللہ پاک ہمارے قصوروں کو معاف کر دے۔ تو ماشاءاللہ جو لوگ کام کر کے آئے، جو پیدل چل کے آئے، جو مجاہدہ کر کے آئے، جو لوگوں کا کلمہ صحیح کرا کر آئے اور لوگوں کے پیچھے دوڑ کر ان کی منت سماجت کر کے خوف کے عالم میں پتہ نہیں کون آئے گا، کون مسجد سے نکال دے گا، کون آ کر ہم کو یوں کہے گا کہ یہاں سے چلے جاؤ، ایسے خوف کے عالم کے اندر ماشاءاللہ آپ لوگ قربانی دے کر آئے، اس کا بدلہ تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ بس مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم تمام کو جو دین متین عطا فرمایا ہے، یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، اللہ پاک اس کو پوری دنیا میں زندہ کرے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر کے آ رہے، آپ صبح سے شام تک محنت کر رہے، آپ 2.5 گھنٹے نہیں لگا رہے، آپ پورا دن محنت کرتے۔ ایک ایک آدمی کے پاس 70 مرتبہ کمانا، زیادہ مرتبہ آپ گئے۔ کثرت کو بتلانے کے لیے حدیث کے اندر 70 کا لفظ آیا، اور ایک ایک آدمی کے پیچھے آپ بار بار جا رہے۔ 70 مرتبہ آپ کا جانا یہ دلالت کرتا ہے کہ جو کام ہم لوگ کر کے آئے اور ایک ایک کے پیچھے گئے، یہ اللہ کے نبی کی بڑی سنت ہے۔ آپ دن بھر محنت کر کے آئے، شام کے وقت کے اندر آپ کا چہرہ بھی غبار آلود ہے، آپ کے کپڑے بھی غبار آلود ہے، آپ تھکے ماندے ہیں۔ آپ کی بیٹی زینب پانی کا پیالہ لے کر آگے بڑھ رہی اور ابا جان کے حالات کو دیکھ کر رو رہی۔ ابا جان نے اپنے آپ کو تھکایا ہے، تو بیٹی زینب پانی کا پیالہ لے کر چہرے کو دھلاتی جا رہی اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ ابا جان، لوگوں نے آپ کی کیا حالت بنا کے رکھی؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہم تمام کو خوشخبری دینے کے لیے آپ نے یوں فرمایا، بیٹی تیرے والد کو اللہ نے کام دیا ہے، کام، اور اس کے نتیجے پر اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے، ہر کچے پکے مکان کے اندر تیرے باپ کے لائے ہوئے دین کو اللہ زندہ کرے گا۔ ہماری جو یہ محنت ہے، اس کے نتیجے پر اللہ پاک ہر کچے پکے مکان میں اللہ کے دین کو زندہ کرے گا۔ زندہ تو اللہ ہی کرے گا، کون کرے گا بولو؟ لیکن ہماری محنت کو اللہ پاک ذریعہ بنا دے اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ پاک دین عطا فرماوے، ایمان عطا فرماوے، بولے اس سے بہتر دنیا میں کوئی نعمت ہو سکتی؟ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب اپنا دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں راضی ہو گیا تم سے اسلام کے لانے کی برکت سے۔ اس لیے بڑی مبارکبادی کے قابل بات ہے، ہمارے نبی نے خوشخبری سنائی، میں اور آپ تو کیا سنائیں گے؟ ہمارے نبی نے خوشخبری سنائی، طوبیٰ لعبد، بڑے مبارکبادی کے قابل بندے وہ ہے کہ جس کو اللہ پاک دنیا میں خیر کے لیے استعمال فرما، اور جن کی برکت سے اللہ پاک دنیا میں خیر کو وجود میں لاوے، اور جن کی محنت کے نتیجے پر دنیا میں شر ختم ہو جاوے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ چلے، کتنے فتنے ختم ہو گئے، اور پیدل چلے۔ پیدل چلنا کوئی معمولی چیز ہے؟ بولو، کیا ہم گھر سے مسجد میں جاتے ہیں پیدل جاتے ہیں؟ ارے بولو، پیدل جاتے ہیں؟ اسکوٹر پر جاتے ہیں؟ آدھا کلومیٹر دکان ہے تو کس میں جاتے ہیں؟ اسکوٹر پر جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے دین کی نسبت پر پیدل چلے، یہ پیدل چلنا اللہ پاک کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ کا قہر، جو غضب اللہ پاک کا اس وقت کے اندر نازل ہو رہا ہے،
یوں آتا ہے کہ پیدل چلنے کی برکت سے اللہ کا غضب، اللہ کا قہر مہر سے بدل جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ جس عمل سے اللہ پاک کا قہر مہر سے بدل جاوے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کیا نعمت ہو سکتی. اور ہمارے نبی کی بڑی سنت، بلکہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پیدل چلتے تھے. ہمارے نبی طائف میں بولو کیسے گئے؟ پیدل گئے. تو ماشاءاللہ آپ کی جماعت پیدل کام کر کے آئی اور ٹھنڈی گرمی کو برداشت کر کے آئی. ماشاءاللہ کارگزاری تو اصل کارگزاری تو قیامت کے دن کھلے گی. اصل کارگزاری کب کھلے گی؟ یہاں تو دو باتیں ہمارے سامنے آئی، ہم اسی کی کارگزاری لیں گے. اس لیے ہمارے ساتھی کارگزاری سنانے والے، ایک تو آپ کے ساتھی کتنے تھے، اس میں سے 4 مہینے والے کتنے تھے، چلے والے کتنے تھے، آپ کو کتنی بستیاں دی گئی، 18 20 22 25 5 مکان سے زیادہ والی بستیاں یہ آپ کو دی گئی. اس میں آپ نے کیا محنت کی؟ مسجد، مدرسے، عبادت خانے کتنی جگہ کرتے، کتنی جگہ پر مسجد مدرسے نہیں تھے اور آپ لوگوں نے ماشاءاللہ محنت کی. تو آپ نے کہاں محنت کی؟ اور ٹینٹ لگایا ہے، قیام کیا ہے، تو اس میں آپ نے کیا عمل کیا؟ کتنے لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا اور کتنے لوگ آپ کے ساتھ پیدل چلے؟ اور آخری جو دوسرے راؤنڈ کی جماعت ہے وہ یہ بتلا دے تھوڑا بہت کہ بھئی یہاں کتنے ساتھی کو لے کر آئے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آ جاؤ پہلی جماعت آ جاؤ. آ جاؤ پہلے راؤنڈ کی پہلی جماعت. حضرت عباس کی آواز 12 میل تک جاتی ہے بغیر مائک کے. ہماری تو یہ کتنی 100 کلومیٹر بھی نہیں ہے. جماعت کے اندر 6 یا 7 سال کی 4 مہینے والے ہماری جماعت کے اندر 6 یا 7 سال کی 4 مہینے والے. یہ تو کچھ بات 6 یا 7 آپ نے پوچھا نہیں ہوگا، اس کا معنی یہ ہوا. چلو ہمارے جماعت نہیں، آپ کو کتنی بستیاں دی گئی؟ 29 بستیاں دی گئی. لکھ کے لے گئے تھے بستیاں دی. اب اس میں سے مسجد مدرسے عبادت خانے والی کتنی تھی اور جس میں مسجد مدرسہ عبادت خانہ نہیں ہے ایسی بستیاں کتنی ہوگی؟ 10 بستیاں ایسی تھی جس کے اندر عبادت خانہ مسجد وغیرہ تھی اور اس کے علاوہ بستیاں ایسی تھی جس کے اندر عبادت خانہ وغیرہ نہیں تھی. 19 بستیاں ایسی تھی. 29 میں سے 19 میں سے 10 مسجد والی، 10 مسجد یا عبادت کا اور 19 بغیر مسجد عبادت خانہ. 9 ایسی تھی جس کے اندر عبادت کا وغیرہ نہیں. جن میں 7 میں تو گھر وغیرہ کا بیان کیا، 2-3 میں 1-2 میں قبرستان یا درگاہ وغیرہ میں بیان. نہیں پہلی بستی سے شروع کرو نا. پہلے کون سے گاؤں میں گئے؟ پہلے بوٹا کے اطراف میں ابراہیم عبادت خان ہے، وہاں عام مدد مزدور وغیرہ لوگ باہر کے لوگ وغیرہ کا کام کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک آدھ 2 دن محنت، 2 دن ان کے اندر محنت کی. 1 دن کے 2 دن اب 1 آدھ 2 دن کو بولے
बात पक्की थक्की करने की 2 दिन के अंदर मेहनत की એક કામ કરી લે આજે સુને દે હું તમને કાગળ આપી દઉં મારા મોલો પડતો છે कितने मकानात थे और मकान नहीं थे મારે આવું ના आप 5 कह रहे थे वहाँ इबादत गाह कितने लोगों की मुलाकात हुई तकरीबन 20 के 25 लोगों की मुलाकात हुई 20 के 25 ખુરશીમાં ફોન 20 के करीब लोगों की मुलाकात हुई और वहाँ मुलाकात उन लोगों को हमने मस्जिद में आने की दावत की लेकिन उन लोगों के पास ऐसा वक्त नहीं था इससे आगे टोटली कितने लोग थे इनमें से 20 आदमी की तकरीबन मुलाकात कितने दिन कयाम किया 2 दिन आप लोग सबकी मुलाकात नहीं कर सके अक्सर वहाँ जाते थे तो काम वगैरह मशगूल थे जिसकी वजह से आप बाहर नहीं आ सकते उनको पूछा उनका फारिग वक्तों के अंदर गए लेकिन फारिग वक्तों के अंदर गए तो कोई बाहर काम वगैरह के अंदर चला गया था अच्छा वहाँ क्या मेहनत हुई और मेहनत तो सबसे पहले इबादत गाह के अंदर वो लोग किस तरह आने वाले बने गरीब भी इबादत गाह लेकिन अक्सर वो काम की वजह से इबादत गाह के अंदर नमाज वगैरह के लिए नहीं आते तो उन पर ये मेहनत हुई कि वो इबादत गाह के अंदर नमाज वगैरह के लिए आए फिर आपको गए थे इबादत में लाने के लिए आप कुछ नमाज पढ़ते थे लोग अगल बगल के जो दुकान वाले थे वो एक आदमी पढ़ने वाले थे तो आप नहीं ये 50-60 आदमी की बात कर रही है तो कौन है अच्छा तो उनकी जहाँ रहाइश थी जहाँ कारखाना था वहाँ अजान नमाज को कायम करने की कोई शक्ल पैदा नहीं दूसरे गांव में हुई वहाँ पे शुरुआत की तो अभी तक इसी की बात चल रही है दूसरे गांव की बात नहीं क्यों नहीं की इसमें आपने कोशिश की इस वक्त मस्जिद में तैयारी में ज़्यादा कौन सी तैयारी जमात में जाने की पूरे वो सामान वगैरह आपकी जमात तो निकल चुकी थी ठीक है पूरी तैयारी वहाँ जाती क्या तैयारी घर से सामान तो लेके चले घर के सामान लेकर इस समय जो सामान है पूरा वहाँ पे तैयार किया फिर आगे सामान के तैयार करने में एक आता दूसरा जाता बात चीज़ें खरीद कर लाए बात मस्जिदों में पड़ी थी पहले जौन के ज़माने में वो सब फिर ये पहले से तैयारी करके नहीं निकले आप है भाई और कौन सा थी ऐसा तुमने खाना पूरी क्यों की तुम अभी घर से कुर्ता पायजामा शाल सब लेकर आए कि ऐसा लेकर चलना चाहिए 2 दिन ज़ाय हो गए और वो 50-60 आदमी पर पूरी मेहनत करनी चाहिए वो नहीं हुई अब वो 50-60 आदमी तुमको दोबारा कब मिलेंगे ऐसा नहीं कर आप कारोबार में ऐसे जाते हैं क्या अभी घर पे भूल के चले जाते हैं ऐसा नहीं हम दीन की मेहनत का काम तो बड़ी अजमत के साथ करते हैं खाली घूमने फिरने के लिए हम लोग थोड़े जाते हैं कि चलो वक्त निकाल लिया पहले से तैयारी होनी चाहिए जैसे ट्रेनों में सफ़र करके किसी इलाके में जाते हैं तो यहाँ से पूरी तैयारी करके जाते हैं दुकान पर जाते हैं तो पूरी तैयारी करके जाते हैं ऐसे सामान खरीदने के लिए अगर 2 आदमी को रख लेते आपके बाकी के 8-7 तो मेहनत में लग जाते चलो क्या हुआ 2 दिन तो गए फिर आगे फिर दूसरे दिन तीसरे दिन हम आगे भद्रावड़ी काम करके वहाँ कारगुजारी सुना वहाँ गए तो वहाँ पूरे मकान का जायजा हमारे सामने था तो 2 मकान थे और 24 बालिक मर्द थे माशाअल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन मशवरे के अंदर नमाज का वक्त तय करके दरगाह के सामने रूम बनाया हुआ है तो उसके अंदर हमारा क़याम था और उसके अंदर पूरे हर बालिक मर्द को मिलने की अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह
के बाद हमारा मकसद ये है जो नमाज वगैरह है, एक बच्चा थोड़ा कुछ पढ़ा हुआ था तो उसको नमाज वगैरह सिखाई तो थोड़ी उसको खासियत कर दिया कि थोड़ी कुछ एक आध नमाज जिंदा तुम्हारे अंदर हो जाए। और उसके अलावा एक आध नमाज जिंदा हो जाए, 5 नमाजें जिंदा हो जाए। हमारी दावत तो पूरी अजीमत के साथ होनी चाहिए। ये देखो, ये 5 नमाजें फर्ज, अगर उनकी तरफ से आता है कि अभी ईशा की नमाज पढ़ेंगे, फजर की पढ़ेंगे, भाई ठीक है, लेकिन हम अपनी जुबान से ना कहे कि एक आध नमाज जिंदा कर दो। हम 5 नमाजों की अजमत को नीचे ना उतारें। हमारी दावत तो पूरी होनी चाहिए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 2 दिन का क़याम रहा और मुलाकातें अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल, माशाअल्लाह। ये बहुत अच्छा काम किया कि 24 से 24 अफराद की मुलाकात हुआ। अच्छा, इनमें नमाज की कोई जगह नहीं थी उनके पास? जी, वो दरगाह के सामने पूरी बनाया हुआ था लोगों ने, उसके अंदर ही माशाअल्लाह पैदल गए, माशाअल्लाह। फिर फोटो का गए, वहाँ मस्जिद की गैर मानूस थी, मस्जिद के अंदर क़याम करने की इजाज़त थी, लेकिन बाहर हमने टेंट वगैरह डालने की जगह ढूंढी, लेकिन बारिश की वजह से कोई जगह पर टेंट वगैरह डालने की जगह नहीं थी। फिर आप मस्जिद में दाखिल हुए, मस्जिद में 2-3 सफ़ गए। यहाँ के पूरी जमात मस्जिद में जानी चाहिए ना? नहीं गए भाई, इनके सामने रवानगी की बात हुई थी है भाई, बोटाद वालों ने रवानगी की बात करी थी। किसने रवानगी की बात करी थी? किसने बात करी थी? बात पहले दिन जब जमात रवाना हुई तब 20 मिनट बात की, 2-3 दिन के बाद बात करनी। 2-3 दिन के बाद बात, तो ये बात नहीं बतलाई कि जब हमारी जमात किसी गांव में या किसी बस्ती में दाखिल हो तो पहले तो मस्जिद में जावे। मस्जिद मानू से गैर मानू से गुज़िश्ता सालों में निकाला है नहीं निकाला है, हमारी जमातों ने क़याम किया नहीं किया, वो कुछ मत सोचो। आप पहले तो मस्जिद में दाखिल हो जाओ, इसलिए कि मस्जिद किसका घर है? हमारे सबके अंदर है। अगर कोई आदमी यूं कहता है, मसलन एक आध आदमी, कि तुम यहाँ से निकल जाओ, आप इनको समझाओ, प्यार मोहब्बत से इनको अजमत से बतलाओ, फिर भी अगर जिद पर आ गए तो बहस मुबाहिसा नहीं करेंगे, फिर हम मस्जिद के बाहर ठहरेंगे। मस्जिद के बाहर भी अगर किसी ने नहीं ठहरने दिया तो थोड़ा और दूर ठहरेंगे, मुसलमानों की बस्ती के करीब ठहरेंगे। वहां पर भी नहीं ठहरने दिया तो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और थोड़े दूर खेतों में चले जाएंगे। लेकिन पहला अमल ये करेंगे कि किसी भी गांव में दाखिल होते ही हम मस्जिद में कदम तो रख देवे। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि आपको हाथ पकड़ के निकाल देवे, कोई मार पिटाई करे। अब वो माहौल नहीं रहा। वो आज से 10 साल पहले अगर कहीं है तो होगा, लेकिन अब ऐसा माहौल नहीं रहा, बल्कि बहुत से हमारे मस्जिद में ठहराने के हामी हो जाते हैं। अगर कोई एक आदमी आकर मना करे तो दूसरे 2 जवान खड़े हो जाएंगे, भाई क्या को ना कहते हो? तो मस्जिद अल्लाह का घर है, ये नमाज पढ़ेंगे, जिक्र करेंगे, तालीम करेंगे, लोगों को दावत देंगे। इसलिए ये याद रखना, हमारी कोई भी जमात जोन की जब भी जावे पहले मस्जिद में ही चली जावे और वो जहन को खाली करके जावे कि गुज़िश्ता सालों में यहाँ लोगों ने निकाल दिया, हमारी जमातें नहीं ठहरी, ये गैर मानुस बस्ती है, हम इसको जहन में न लाएं। हम मेहनत कोशिश करें। इसी तरीके से पूरी दुनिया में इब्तिदा में सब मस्जिदें गैर आबाद थी, गैर मानुस थी। हमारी जमातों ने क़याम कर लिया तो क़याम शुरू हो गए। आगे 1-2 बस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा किया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा किया, माशाअल्लाह, और मुकम्मल हुआ, जमात भी ठहरी। अच्छा, ये बस्ती में कितने गांव थे जो मस्जिद में आप नहीं ठहरे? 12 घर थे, 14 घर थे, माशाअल्लाह। वहाँ क्या काम हुआ? वहाँ 14 घर से नमाजें तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मस्जिदों में ही पढ़ी तमाम साथियों ने, और असर मगरिब बाद तमाम साथियों की वहाँ मुलाकातें हो गई, माशाअल्लाह। तो कुछ मस्तूरात में काम हुआ?
हुआ मस्तूरात में काम हुआ। पूरे सफर में कहीं हुआ? मस्तूरात में अक्सर जो मानुस बस्तियाँ थी उसमें काम हुआ, बाकी गैर मानुसों में बहुत काम नहीं। अच्छा, आप मुलाकात करते थे तो घर में बैठकर करते थे? जी, मुलाकात जहाँ भी करते थे घर के अंदर बैठकर करते थे। तो मस्तूरात ने आपकी बात तो सुनी होगी ना? जी हाँ, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह घर में बैठते थे वहाँ साथ ही इसी तरह बात करते थे, पूरी मस्तूरात के सामने आते थे। माशाल्लाह। यानी ये भी मस्तूरात को सुनाने का ये भी बहुत बड़ा जरिया है कि हम घर में बैठकर बात करें, मर्दों के सामने बात करें, मस्तूरात को जमा न करें, लेकिन बुलंद आवाज़ से इसलिए करेंगे कि मस्तूरात तो मुतवज्जे हो गई। कोई भी पराया आदमी हमारे घर में आएगा तो मस्तूरात फौरन मुतवज्जे हो जाएगी, और मस्तूरात को सुनाने से मस्तूरात के जहन बन गए तो माशाल्लाह पूरे ख़ानदान का जहन बन जाएगा। एक मर्द का दीनदार होना एक अकेले आदमी का दीनदार होना है, और अगर मस्तूरात का जहन बन गया, दीनदारी आ गई, तो वो पूरे ख़ानदान को लेकर चलेगी। उसकी गोदों में पलने वाले बच्चे वो भी दीनदार बनेंगे, वो अपने शोहर को भी, अपने बेटों को भी, अपने अतराफ की बहनों को, यानी उसकी बरकत से अल्लाह पाक पूरे ख़ानदान में दीन को दाखिल करेगा माशाल्लाह। तो सब जगह आपने घर में बैठकर बात की? ज़्यादातर अक्सर जो थे घर में बैठकर ही बात करते थे। माशाल्लाह। और क्या हुआ? और वहाँ तो टोटली कितनी बस्तियों में जहाँ मस्जिद, मदरसा, इबादत खाना नहीं था वहाँ खेले? वैसे क़याम के एतबार से ऐसी 8 बस्तियाँ थी, जिसके अंदर 9 बस्तियाँ जिसके अंदर मस्जिद मदरसा नहीं था, उसके अंदर क़याम किया। और जहाँ 1-2 मकान थे वहाँ वो क़याम कहाँ करते थे? 9 जगह? 1-2 जगह दरगाह के अंदर किया, माशाल्लाह। और 1-8 जगह कब्रिस्तान के अंदर, और बाकी तमाम जगह पर मकान के अंदर। टेंट लेकर गए थे? टेंट हमारे साथ। कितनी जगह टेंट बांधा? टेंट ये बांधने की 1-2 जगह पर बांधने का था, लेकिन बारिश की वजह से, कीचड़ की वजह से वो हुआ नहीं। बाकी अक्सर जगह उसका मौका नहीं मिला। अच्छा, तो हर जगह 2-2 दिन का क़याम किया? जी, 2 दिन का क़याम, 1-2 जगह पर 1 दिन का क़याम। कितने लोगों ने आपके साथ नमाज पढ़ी? पूरे सफ़र के दरमियान 25 से 30 लोगों ने हमारे साथ नमाज पढ़ी। अच्छा, मस्जिद और इबादत का वगैरह नहीं हुआ। किसी इलाके में नमाज अजान नहीं थी और आपकी जमात की बरकत से अजान नमाज जिंदा हुई, ऐसा कुछ हुआ? इसकी कोशिश की आपने? जी, मेहनत हर गांव के अंदर जाते थे, ये फिक्र लेकर जाते थे और इसके बारे में तदबीर बनाते थे, फिक्र करते थे और उनको समझाते थे किसी तरह आप नमाज और अजान वगैरह जिंदा हो जाए। आपने मेहनत तो की ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। कितने लोगों को कलमा सही करवाया? ये मुलाकातों में जाते थे अक्सर, वहाँ पे होता था, लेकिन वो बाकायदा बिठा कर किया, वैसे 5-6 लोग। तो सबको ही सिखला देते हैं? जैसे 5-6 को सिखलाया, तो आपकी मुलाकातें कितने लोगों से हुई होगी पूरे सफर में? सफर में 500 के करीब हो गए। तो 500 को कलमा याद था? नहीं, थोड़ी तफक्कुर कर लेते। और माशाल्लाह जैसे इब्तिदा में आपको मालूम होगा कि आज से 40 साल 50 साल पहले गश्तों में जाते थे ना, तो एक दूसरे का कलमा सुनते थे। मालूम है किसी को? पहले मुतकल्लिम अपना कलमा सुनाता था, फिर जिससे मुलाकात करते थे उससे कलमा सुनते थे। अब अगर कलमा कच्चा पक्का है तो उसको याद करा ले, मस्जिद में बुलावे, इनको बिठा देते थे। ऐसे अभी हमारे 500 आदमी की मुलाकात हुई, उसमें 5-6 आदमी का कलमा आपने माशाल्लाह सही करवाया, लेकिन बाकी के जो 550 के करीब उनका तफक्कुर हो जाता, प्यार मोहब्बत से उनसे बात करते, देखो हमारा कलमा सुन लो, आप भी अपना कलमा सुना दो। और पता ही चल जाता कि एक आदमी की मुलाकात से ही कि भाई उसकी ज़िंदगी में कलमा, नमाज, दीन कितना है। हम थोड़ी मेहनत करके अब ये 500 आदमी की मुलाकात दोबारा कब होगी? अरे बोलो, यानी कलमा इनका याद हो जाता और कलमे की बरकत से पूरी ज़िंदगी में अल्लाह पाक इनको दीन की तौफीक अता फरमाते,
तो हमारे लिए कितना बड़ा, हम तो ये काम करने के लिए गए थे, तो लोगों को कलमा नमाज सिखाने के लिए करना चाहिए। अक्सर वो साथी जो पिछले वक्त लगा था वो अक्सर उनकी ये याद है, पहले कलमा सुनते थे सुनाते थे, लेकिन अक्सर जो नए साथी थे 2-3 वो बाज मरतबा आपको रवानगी में ये बात आई थी, जी आई। तो फिर करना चाहिए। आप माशाल्लाह गए, कुर्बानी दी, ठंडी गर्मी को बर्दाश्त किया, पैदल गए और बारिश में आप ठहरे, तो काम अपना पूरा हो जाए। भाई हम तो पूरी अपनी ताकत वसूल करने की करें, कि हम जब निकले ही है अल्लाह के दीन के तकाजे पर, तो हम अच्छी तरीके से मेहनत कर लेते। माशाल्लाह आपको सवाब मिला, आपने मुजाहिदा किया, आप पैदल चले, आप घर बार को छोड़ा, बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन थोड़ा सा इस लाइन की भी मेहनत और हो जाती। अच्छा, आपकी पहली राउंड की जमात की, चलो माशाल्लाह। कितना पैदल चले? 129 किलोमीटर। 129 किलोमीटर, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना चले? 14 किलोमीटर। सब साथी खुश है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ फ़ायदा हुआ आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फ़ायदा हुआ? अक्सर हम तो अपने इलाकों के अंदर काम करते हैं, लेकिन जब बस्तियों का हाल देखते हैं, ये बस्ती अब बिल्कुल बेतरफ भी नहीं है, क्योंकि अक्सर मुलाकात करने जाते हैं तो बिल्कुल बगैर चाय के भी वापस नहीं लौटाते। तलब भी है, लेकिन उनके पास जो हमारी कमी है कि अल्लाह ने हमें दिया है तो हम उन तक अभी तक नहीं पहुँचा पाए, हालांकि बिल्कुल हमारे अतराफ में। कितना 10 किलोमीटर है? 10, 12, 15। माशाल्लाह। आइंदा की कुछ नियत करिए। जी इंशाल्लाह। क्या? ये आइंदा जो 2 अगस्त है कि हम अपनी जात से इंशाल्लाह ऐसी बस्तियों में करेंगे। उसके अलावा 3 दिन भी है कि इंशाल्लाह ऐसी बस्तियों के अंदर करेंगे, लगाएंगे, क्योंकि हम मतलब ये जमातें जाती है हमारी साल में 1 आध मरतबा, और अक्सर बहुत सी जगह देखा कि साल में एक मरतबा जमात जाती होगी तो साल में 1 मरतबा आते होते। देखा ना माशाल्लाह, यानी इंतज़ार में है, तलब भी है, कमी हमारी तरफ से है कि हम पहुंच नहीं सकते। और इनको ये भी मालूम है कि साल में 1 मरतबा ही आप आते हो, तो 1 मरतबा जाना इनको अच्छा नहीं लग रहा है, बल्कि बार बार जावे। इसलिए आपको ये पूरी कारगुजारी होगी ना, उसके बाद आपको देहात अपने जिम्मे लेने के लिए आपको बिठाएंगे। ऐसे वक्त के अंदर आप अपनी पूरी जमात जहाँ जहाँ गई है उन तमाम देहातों में जमातें कैसे पहुँचे, उसके लिए पूरा मुनज़्ज़म निज़ाम बनाकर आइंदा साल के अंदर उनको वो शिकायत नहीं होवे, आप इसी तरतीब कर लेना इंशाअल्लाह। ठीक है, चलो अल्लाह कबूल करना। भाई दूसरी जमात आ जाओ। पहले राउंड की जो दूसरी जमात અમારી સુંદરનગર ઝોનમાં જમાત પહેલા હલકાની ચાલેલી માશાલ્લાહ, તેમાં અમને 17 એવા ગામ આપેલા હતા જેમાં મસ્જિદ હતી। आप लोग कितने साथी थे? અમે લોકો 10 સાથી હતા। माशाल्लाह, ऐसे 4 महीने वाले 4 મહિના લગાડેલા સાથી 4 હતા અને ચિલ્લા લગાડેલા 3 સાથી હતા। बाकी 3 साथी નવા હતા, 3 ગીલા ગયેલા। 3 દિવસ લાગે। હા, આપણે તો એ વસ્તુ નક્કી છે ને કે ભાઈ ઝોનની જમાતોમાં તમામનો વક્ત લાગો છે। 3-4 સાથી 4 મહિનાવાળા, બાકી તમામ ચિલ્લાવાળા। તો તમારે તો નયા સાથી બી પુરાના જેવા હશે ને? હા હા, એટલે લઈ ગયા તમે। ચાલો માશાલ્લાહ। પછી કેટલા ગામ આપેલા? 17 ગામ હતા જેમાં મસ્જિદ ને ઇબાદતગાહ હતી, ને બાકી બીજા જે ગામ હતા જે 9 ગામ જેમાં ઇબાદતગાહ નહોતી। અચ્છા, તો જ્યાં ઇબાદતગાહ ના હતી એવા 9 ગામોમાં તમે શું ક્યાં કર્યો, શું મહેનત કરી તે બદલા? અમે 9 ગામમાં માશાલ્લાહ કયામ કરેલો। માશાલ્લાહ। અમુક ઇલાકામાં 2 દિવસ રોકાયેલા ને ઘણા ગામમાં 1 દિવસ રોકાયેલા। ક્યાં રોકાતા હતા?
અમારી ભેગું ટેન્ટ હતો સાથમાં, તો 7 જગ્યા એવી છે કે જ્યાં અમે લોકોએ બારા मैदाનમાં ટેન્ટ બાંધીને અમે કયામ કરેલો. माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो कितना अच्छा काम है। ऐसी ठंडी के अंदर टेंटों में कयाम करना ये बहुत बड़ी कुर्बानी का जरिया है। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या मेहनत हुई वहाँ? માશાલ્લાહ, જે ઇલાકામાં મસ્જિદ મદ્રસા નહોતા એ ઇલાકામાં બધા લોકોની અમે લોકો મુલાકાત કરતા. બધા જેવી રીતે 5 ઘર હતા. અક્ષર જે ગામ હતા એમાં 6 થી 7 જ મકાન હતા. એક ગામ જે છે તરેડ ગામ, જેમાં ગેરમાનુસ હતા, યાની કે બરેલવીની મસ્જિદ હતી, એમાં 100 મકાન હતા. ओहो, ત્યાં અમે લોકો મેદાનમાં વાડીમાં 2 દિવસ રહેલા. અમને એ લોકોએ માશાલ્લાહ મસ્જિદમાં રોકાવા માટે એ લોકોએ કીધું હતું, તો અમે લોકો 8 થી 6 મસ્જિદમાં આરામ કરી જતા ને ખાવા પીવાનું અહીંયા મેદાનમાં બનાવી ને 5 ટાઈમની નમાઝ પણ ત્યાં પડતા ને એલાને થતું ને 5 ટાઈમની જે વાતો દીનની હતી એ બધી અમે લોકો ત્યાં ઇજ્તિમાઈ તौर પર કરતા હતા. માશાલ્લાહ, रात भी मस्जिदों में कायम करी। હા, રાત કયામ કર્યો. તો પછી તમારો ટેન્ટ 2 સાથીઓને બી ત્યાં લઈ જવાતા ને 8 સાથી રોકાવું હતું ને, એ મુનાસિબ નહોતો એટલે એટલે કે એ લોકોની તરફ મના હતું. હા, એવી રીતે શું હતું? બસ ઓછા સાથી કયામ કરે એવી રીતે. તો 8 તો ઓછા જ હતા ને, અડાના અમે મુકાબલા 10 હતા, 10 સાથી હતા. ચાલો માશાલ્લાહ. यानी આ પહેલી વખત જમાત ત્યાં કામ કર્યો? ને આની પહેલા કરેલું છે. એ જમાતું એ ઘરમાં જ કામ કરતી હતી, બહુ દૂર. બરાબર, એક વાર એક જમાતે કામ કરેલું. હું તમને પૂછું છું, આ મસ્જિદમાં જે કાયમ કર્યો તે પહેલી વખત આ પહેલી વાર કયામ કરેલો છે. અસરની નમાજમાં ત્યાં મિનિમમ અમે લોકો 2 દિવસ રહ્યા. મૌલાના નહોતા, એ બસ્તીની અંદરમાં 100 છોકરાને અમે અસરની નમાજ બાદ ભેગા કરતા ને માશાલ્લાહ જે બની શકતું તો અમે એ લોકોને ભાગ છે, ચોકલેટ છે, બધું આપતા ને બધા છોકરાઓને અમે બેસાડી ને બધાને કલમો પણ પડાવતા. કોકને ગુસલના ફરજ છે એવી રીતે બધાને પૂછતા હતા અમે. મસ્જિદમાં બેસી? મસ્જિદમાં બેસી. માશાલ્લાહ. માશાલ્લાહ, શેનમાં વાહ ભાઈ. 2 દિવસ એવી રીતે અમે કયામ અહીંયા એવી રીતે બધા છોકરાને ભેગા કરેલા. તો તમે 6 માણસો મસ્જિદોમાં સૂતા હતા હા, ને 2 4 સાથી ટેન્ટમાં. 4 સાથી ટેન્ટમાં. ત્યાં ખાવાનું ત્યાં જ છે. અચ્છા, મસ્જિદમાં ખાવાનું મુનાસિબ નહોતું એટલે અમે લોકો ત્યાં જમવા ટેન્ટમાં આવ્યા જતા. અગર કોઈ રૂકાવટ નહીં હોય ને તો પૂરી જમાત જ મસ્જિદમાં જતી રહે ને મસ્જિદમાં જ કયામ, મસ્જિદમાં જ ખાવાનું, મસ્જિદમાં જ આપણે જમા કરીએ. જેવી રીતે આપણે માણસ મસ્જિદોમાં જઈએ છીએ, આ બી માણસ જ હતી. તમને કોઈ રોકેલા તો નહીં ને? નહીં. પછી માશાલ્લાહ. તો પહેલે ગયા વર્ષોમાં 5-25 વર્ષો પહેલા કંઈ થયું કે બાકી એને યાદ રાખવાની જરૂર નહીં. ચાલો માશાલ્લાહ, બહુ સારું કર્યું. પછી આગળ પછી એવા 2 ગામ છે જ્યાં માશાલ્લાહ હાલમાં 2 થી 3 ગામ છે ત્યાં મક્તબ ચાલે છે, જ્યાં મસ્જિદ નથી ત્યાં અમે લોકો શરૂ કરાવેલો છે મક્તબ. માશાલ્લાહ ત્યાં હાલી રહ્યો છે 3 ગામમાં મક્તબ. માશાલ્લાહ, ચાલે છે અત્યારે? હા, ચાલે છે ત્યાં. ત્યાં ક્યાં કેમ કર્યો? ટેન્ટમાં? હા, ટેન્ટમાં છે. ત્યાં શું મહેનત કરી બતાવો થોડી. અમે જે ઇલાકામાં માશાલ્લાહ કયામ કરતા હતા એ ઇલાકામાં સવારે ફજર પડીને નીકળી ગયા હતા. પછી ફજર બાદ ત્યાં પહોંચી તાલીમ શરૂ કરતા. પછી અમે લોકો ત્યાં બાલિક મરદ કેટલા છે, પછી મક્તબ અહીંયા છે કે નહીં, માશાલ્લાહ. તો એના માટે એની ખાસ- તહેકીક કરતા હતા કે બાલિક મર્દ કેટલા છે. હા, માશાલ્લાહ માશાલ્લાહ. અને મક્તબમાં અહીંયા બચ્ચા કેટલા છે. અક્ષર ઇલાકામાં બચ્ચા બિચારા કને કોઈ વસ્તુ આવડતી નથી. જે લોકો ઓલા અલ્ફાઝ જે ગેર અલ્લાહને ન માનવાવાળા બોલતા હતા, તો એવા ઇલાકામાં માશાલ્લાહ એ લોકોને તરગીબ આપી, ફોન નંબર આપ્યા કે તમારે જ્યારે પણ મક્તબ શરૂ કરવો હોય તો અમને કહેજો. અને હાલમાં અમે લોકો પણ ત્યાં જઈએ છીએ. 3 જગ્યા એવી છે કે ત્યાં માશાલ્લાહ મક્તબ હાલમાં શરૂ છે. ને એક જગ્યા છે બગદાણા, ત્યાં વાડી છે. અમે પહેલી વાર જ કયામ કરેલો, કોઈ જમાતે કયામ નથી કરેલો. 15 મકાન છે ત્યાં, 60 લોકો બાલિક મરદ છે, 40 થી 30 મસ્તુરાત છે ત્યાં, ને 15 થી 20 છોકરા છે ત્યાં. ત્યાં કોઈ મદ્રસો કે મસ્જિદ નથી.
તો એક ભાઈ કીધેલું છે કે ભાઈ અમે લોકો જગ્યા આપશું, તમે લોકો ત્યાં જગ્યામાં અમને બનાવી દે. તો અમારા એક સાથી છે કે જે બિચારા સાહિબ એમાં એ કીધું છે કે અમે ત્યાં ઇન્શાલ્લાહ નાનું ઇબાદતગાનું બનાવી દઈશું. બગદાણા ગામ છે. એટલે આપણે છે ને બધી જગા મસ્જિદ તામીર કરીએ, ઇબાદતખાનું તામીર થાય, એ બધો વાયદો નહીં કરવાનો. આપણે તો આ જેવી રીતે કાચું અત્યારે બનાવ્યું છે ને, 4 બંબુ ઊભા કરી પ્લાસ્ટિક લગાવી તે ત્યાં શરૂ કરી દેવાનું. પછી ઓટોમેટિક અલ્લાહ પાક એમને તોફીક આપે. આપણે બધી જગ્યા પહોંચી નહીં શકીએ. આપણા આખા ભાવનગર જિલ્લામાં 200-300 ગામ હશે, એ બધી જગ્યાએ આપણે પહોંચી નહીં શકીએ. કોઈ માલદારને તલાશ કરવાનો, એમને મંદિર સમાજત કરવાની, એના કરતાં આપણે સીધી સાદી કોમન જગા જે બી હોય ત્યાં ઇબ્તિદા ચાલુ, હા, પઢાવવા વાળોને ઇંતજામ આપણે કરી આપવાનો. આ જમાતનો એક સાથી હતો માશાલ્લાહ, જે એની ફિકર કરતા હતા એટલે ચાલો, એને બહુ તરગીબ આપી. માશાઅલ્લાહ. પછી ત્યાં મસ્તુરાતમાં કંઈ કામ થયું? હા, અક્ષર ઇલાકામાં નવે જગ્યામાં ત્યાં મસ્તુરાતને અમે લોકો એક જગ્યાએ બેસાડી, અલગ રૂમમાં અમારા એક સાથીના ચિલ્લો લાગેલો છે મસ્તુરાતમાં. તો એ વાત માશાલ્લાહ માયક એ સાથમાં હતું. માશાઅલ્લાહ. તો વાત માશાલ્લાહ 15 થી 20 મિનિટ જે મોકો હોય એવી રીતે કરી લેતા હતા. देखो ये फिक्र की बात है माशाल्लाह, इन्होंने सब जगह मस्तूरात में जोड़ किया, माइक लेकर चले, और इनका एक जो साथी था जिसका चिल्ला लगा था उसके जरिए से उन्होंने बात भी करवाई माशाल्लाह. कहीं अजान नमाज जिंदा थी? આ એક વિલંપર ગામ છે, ત્યાં માશાલ્લાહ ફજરની નમાઝ થાય છે. ફજરની નમાઝ તમારી જમાતની બરકતથી કઈ આની પહેલા ગયા હતા ને ત્યારથી શરૂ છે માશાલ્લાહ બેલમપર ગામમાં. એક ગામમાં, બાકીના બીજા 8 ગામમાં 8 ગામમાં નથી શરૂ કોઈ જગ્યાએ. તમે કઈ કોશિશ કરી? આ કોશિશ કરી છે ઇન્શાલ્લાહ શું કોશિશ કરી? કે એ લોકો 5 વખતની નમાઝ શરૂ કરી દે, એના માટે એ લોકોને તરગીબ એ તો આપી. તમે એમને કીધું, બયાન કર્યો. તમારી મોજૂદગીમાં કંઈ ચાલુ થઈ ગઈ હોય એવી કંઈ કોશિશ થઈ? નહીં, એવું નથી. મસલન 15 ગામ, 15 માણસોનું ઘર છે, 25 બાલિક મઠ છે, ભાઈ આપણે અહીંયા નમાઝ પઢીશું, તમે એમને બોલાવ્યા, એમાંથી કોઈને અજાન આવડતી હોય તો અજાન અપાવી, જે નમાઝ ઇમામત કરી શકતા હોય, જેને 4-5 સૂરતો યાદ હોય તો તેને ઇમામત બનાવીને તમે ગામવાળાને જમા કરીને કે ભાઈ આ તમારી મસ્જિદ છે, 5 નમાઝ અહીંયા પઢો, અજાનનો આ ફાયદો છે, નમાઝ તો આપણી અલ્લાહ પાકે હુકમ કર્યો કે ફરજ નમાઝ છે, એવી બધી તરકીબી વાત કરીને એ લોકોને આમદા કરે. આ ગામ જ એવા હતા કે જે અક્ષર લોકો બિચારાને કલમો આવડતો જ નહોતો. એ બિચારાને જ આપણે કાલમાં નમાઝ શીખવાડવા ગયા હતા ને. એ ભાઈ એ તો બિચારા હતા જ. પણ ઘણા ગામ એવા હતા કે અમે એને પૂછતા કે ભાઈ નમાઝ તો કે અમે 1-2 ટાઈમની ઘરે પઢી લઈએ છીએ પોતપોતાની રીતથી. ભાઈ નમાઝ તો મસ્જિદમાં બાદ જમાત જ પડવાનો હુકમ છે ને. એટલે ઘરે પડે તો 1 માણસ 2 માણસ પડે, ને મસ્જિદ હોય તો આખું ગામ આવે. એવું કંઈ નહીં થયું? ચાલો કઈ વાંધો નહીં. કેટલા લોકોને કલમો શીખડાયો? મસાલા જે 9 જગ્યાથી ત્યાં 25 થી 30 માણસોને કલમો શીખવાડેલો. એક તો કલમો તમે એમને પઢાયો, એક કલમો તમે એમને યાદ કરાયો. તમે શું કરાયું? અમે બેસાડતા એને અમારી ભેગું લઈને આવતા ત્યારે હલકામાં. પછી બસ અમારી ભેગું 15-20 મિનિટ બેસતા, થોડું ઘણું એને રટાવી દેતા. કલમો યાદ થઈ ગયો બધાને? બધાયને તો નથી થઈ ગયો, જેટલી આખી બસ્તી હોય ને 20 થી 25 માણસોને યાદ થઈ ગયો માસાલા. તમે તો 10 માણસોની જમાત હતી તો 10 માણસો લાગી જાય ને અડધો કલાક બી એમને કલમો શીખડાવે તો બાજુનો તો અડધો કલાકમાં યાદ થઈ જાય, 1 કલાકમાં યાદ થાય. 10 વખત 20 વખત 25 વખત એમને રટાવીને લાવવું જોઈએ. આ મોકો ઘડી ઘડી થોડો આવે છે આપણા હાથમાં. चलो हमें आइंदा इंशाल्लाह 100% देखो हमारी जमात जहाँ जावे, अगर कलमा याद नहीं है तो कलमा याद करावे, अजान नमाज जिंदा नहीं है तो अजान नमाज की फिक्र करे, बाकी पूरी फलसफे की बातें तो हम बाद में करें. ये बुनियादी बात है भाई. एक मुसलमान होकर जिसको कलमा याद नहीं होगा, बोलो उसकी जिंदगी में बाकी दिन कैसे आएगा?
تو ہم جب اللہ کے راستے میں گئے ہیں، پیدل گئے، قربانی دیے، تو یہ تمام کام ہم کو کر کے آنے چاہیے. چلو اور آ جاؤ ماشاء اللہ. دوسرا راؤنڈ کی ہماری جماعت ہے، متفرق جماعت ہے، اور 11 ساتھی تھے ہمارے. اس میں 9 ساتھی ماشاءاللہ 4 مہینے لگے ہوئے تھے، اور 2 علماء کرام سال والے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اس میں سے ہمیں 18 بستی دی گئی تھی، اور 11 بستی ایسی تھی جہاں مسجد اور عبادگاہ تھے، اور 7 دیہات جو ایسے تھے جہاں پر مسجد نہیں تھی. وہاں ہم نے ٹینٹ لگا کر کام کیا اور قبرستان میں کام کیا، اور ایسا مکان مل جاتا تھا ہمیں کہ جہاں کوئی رہتے نہیں تھے، تو ماشاءاللہ ایسے مکان بھی ہمیں اس جگہ پر کام کیا. ہم ایسے مکان کیسے مل جاتے تھے؟ یعنی ان سے پوچھتے تھے یہاں کوئی رہتا تو نہیں ہے، تو اس جگہ پر رہتے تھے، ورنہ نہیں رہتے، ورنہ ٹینٹ لگا دیتے تھے. پھر بھی احتیاط یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹینٹ تھا تو ہم عمومی مجمع جمع ہو جاوے ایسی جگہ ٹینٹ لگا کر ہی قیام کریں. کسی کے مکان کو مانگنے کی یا کسی کے مکان سے درخواست کرنے کی اس کی ہم ضرورت محسوس نہیں کریں، اس لیے کہ ٹینٹ ہمارے ساتھ تھا. اچھا دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے کہ کم مکانات ہوتے ہیں تو وہاں آپس میں اختلاف بہت ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس مکان میں آئیں گے، کچھ لوگ ان کے مکان میں نہیں آئیں گے. عمومی جگہ ہوتی نا تو دونوں لائن کے آدمی یہاں پر آ جاتے ہیں. اس لیے پہلے ہماری کوشش تو یہ ہو کہ بھئی ہمارے اپنا ٹینٹ بھی ہے تو کوئی عمومی جگہ پر جہاں پورا گاؤں کے مجمع جمع ہو جاوے اور ان کے بچے بھی آوے، اذان ہوئے، اذان کی آواز گھروں میں پہنچے، مستورات اذان کی آواز سنے، مرد سن کر آوے، بچے آوے، بچوں کو بھی قریب کرنے کا، ان کو بھی اذان کے کلمات سکھلانے کے. وہاں تعلیم کے حلقے میں سب آتے ہیں، وہاں گشت کر کے سب کو جمع کرتے. یعنی جو مقصد کے لیے ہم گئے تھے وہ تمام مقصد ہمارا آسانی کے ساتھ پورا ہونے کی جگہ تو کسی کامن جگہ پر ہے کہ جہاں پر کسی کا آنا مشکل نہیں ہو، ایسی جگہ ہم کو کام کرنا چاہیے. چلو ماشاءاللہ ہم نے وہی محسوس کیا. اگلے ساتھی ماشاءاللہ ہمارے تھے تو اس کو ہم نے یہی ترغیب دی اگر ہمیں کوئی مکان میں کام نہیں کرنے کا، ٹینٹ جہاں بھی جائے انشاءاللہ ٹینٹ ہی لگائی. ماشاءاللہ یہ محسوس ہمیں بھی ہوا، کیونکہ جس طرح آپ نے بتایا کہ 10 مکان ہیں تو 5 مکان والے اس مکان میں نہیں آتے، تو وہ بھی چیز ہمیں محسوس ہوئی. آئندہ ہم ساتھی نے یہی بتایا، آئندہ انشاءاللہ ہم ٹینٹ لگا کر ہر جگہ کام کریں گے. یہ بات تو 10 سال سے آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، روانگی میں آئی نہیں ہے یہ بات. نکلنا بہت دن، اس سے پہلے 2012 وقت لگا، پہلی مرتبہ زون میں گیا 2012 میں پہلے لگا تھا. اس میں بھی ایسا ہی کیا تھا. نہیں، چلو ماشاءاللہ. اور ہماری 7 بستی جو ایسی تھی جہاں پر مسجد مدرسہ نہیں تھا، وہاں پڑودر میں 8 مکانات تھے، تو اس میں ماشاءاللہ 100% ملاقات ہو گئی ماشاءاللہ. اور 3 ساتھی ہمارے ساتھ نماز پڑھے، اور 10 ایسے آدمی سے ماشاءاللہ ہمارے ساتھی ملاقات میں گئے تھے تو ان کو کلمہ نہیں آتا تھا. تو ایک 60 سال کے چچا تھے، ان کو بھی ہمارے ساتھی نے کلمہ سکھایا، بلکہ ان کے سامنے مسلسل ساری باتیں رکھی. تو اس نے کلمہ پہلے زبان کے اوپر ان کو نہیں آتا تھا، تو ہمارے ساتھی نے بار بار ان کو رٹایا تو اس کو کلمہ یاد آ گئے. ایسے پہلی بستی میں ہم 10 ساتھی نے ماشاءاللہ کلمہ ان کو سکھایا. اور دوسری بستی نانا عمرڈا ہے، وہاں 9 مکانات ہیں، 22 افراد تھے، 15 کی ملاقات، جتنے گاؤں میں تھے سب کی ماشاءاللہ ملاقات ہو گئی. اور اس کے بعد لاکھنکا میں 15 مکانات ہیں، اس میں 33 افراد تھے، تو اس گاؤں میں بھی 26 ملاقات ہماری ہو گئی. زیادہ تر ہمارا یعنی جس جگہ کے اوپر جاتے تھے ہمارے پاس پہلے سے لسٹ موجود تھا. اگلی جماعت جو ہماری 2025 میں چلی تھی، 24 میں، تو ان کا لسٹ ہمارے سامنے تھا. تو ہمارے ساتھی نے یہ جو لسٹ ہے ہمارا، وہ لسٹ کے اوپر ملاقات کریں گے، اس میں کمی بیشی جو یعنی جس جگہ کے اوپر جاوے تو پورا ہمارا سامنے جو اگلی جماعت چلے اس کے لیے آسان ہو جائے، تو ہم پوری تحقیق کریں گے اس مکانات میں کتنے بالغ مرد ہیں
पूरे गांव में कितने मकानात थे, तो उनके टारगेट भी हमारे सामने रहता था। तो माशाल्लाह तो उस मकान लाखन का में 33 अफराद से 26 की मुलाकात हो गई। देखो माशाल्लाह उन्होंने हर लाइन का तफक्कुर किया, कितने मकान है, कितने बालिग मर्द है, अजान नमाज होती है कि नहीं, मस्जिद है कि नहीं, इबादत का ये माशाल्लाह पूरा आइंदा जमात तक की हम उम्मीद नहीं करें। आइंदा हमारी 3 दिन की जमातों के लिए भी आसानी है। आइंदा साल जोन की जमात की नीयत से न करें, अब तो हमको मुसलसल उसको मेहनत का मैदान बनाने का है। अच्छा, आपने ये तमाम देहातों में मुलाकातें की, इसमें ऐसे लोग आपको मिले कि जिनके कानों में पहली मर्तबा अल्लाह उसके रसूल की बात पड़ी हो? हाँ, एक पटवदर में एक चचा थे कि मेरे 60 साल से मुझे कुछ आता नहीं था, तो पहले तो साथी मुलाकात के लिए गए तो इतना तवज्जो नहीं किया, तो उसके बाद वो चचा इतने तवज्जो हुए कि मेरी 60 साल से कभी मैंने नमाज नहीं पढ़ी। तो वो चचा रोने लगे हमारे साथी के सामने, तो हमारे साथी भी रोने लगे। ऐसी बस्ती के अंदर ऐसे लोग रह रहे, तो उन्होंने बहुत दिल के ऊपर बात ली और आकर पूरी साथियों के सामने कारगुजारी सुनाई। यानी 60 साल की उम्र तक कभी नमाज नहीं पढ़ी। अभी ये कब हुआ एहसास? जब मैं और आप वहाँ पहुँचे। इसलिए ऐसे तो कई बंदे होंगे कि जिनको 50 साल 40 साल 30 साल हुए, अल्लाह के सामने सजदा भी नहीं किया होगा, और आदमी को फिक्र आती है। जैसे पूरी जमात रोने लगी, वो चाचा को भी एहसास हुआ माशाल्लाह। और आगे उसके बाद नाना और जिंदा मानुस जगह में क्या काम करते थे? जहाँ मस्जिदों में ठहरते थे, वहाँ साथी नमाज की ज़्यादातर लोगों को कि इबादत गाह तो वहाँ जुम्मा नहीं होती, तो वो अक्सर साथी माशाल्लाह जुम्मा जोहर के लिए आते थे और दूसरी जगह के ऊपर जाते थे, तो उनको जुम्मा की तरकीब देते थे कि आप जुम्मा के लिए दूसरी जगह है तो वहाँ कुछ हमारे दावत जिंदा है किसी भी मस्जिदों में? हाँ तालीम वगैरह जिंदा, तालीम वगैरह और मशवरा नहीं जिंदा, आपने मशवरा जिंदा कहा? तरकीब दी। और साथी ने वहाँ कुछ 3 दिन की चिल्ले की जमातें बनी, नहीं, तो सब मानुस थे। इतने भी मानुस नहीं थे मुझसे। नहीं, इतने भी मानुस, हम भी इतने कम मानुस हैं। अरे बोलो ना भाई, कितने सालों से 4-4 महीने की आवाज लग रही है, हम सबके 4 महीने लग गए। हम भी इतने मानुस नहीं हैं, लेकिन आवाज तो लगाते, कानों में बात तो डालते। अल्लाह पाक आज नहीं तो कल तौफीक अता फरमाते। हमारे जहनों से काम तो पूरी करे। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने में 7 आदमी को लेकर बैठे, 7-8 आदमी बैठे, और आप इनकी फिक्र कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में जमात भेजनी है। बोलो कैसे करेंगे? हालांकि आपके ज़माने में शायद जमातें नहीं गई बैरून, लेकिन फिक्र और बात तो पूरी फिक्रों वाली होनी चाहिए, तो हम बात को पूरी रखते। 4 महीने की आवाज़ लगे, मानुस मस्जिद में जमातें ठहरती है, मानुस इलाका है, तो कहीं भी 3 दिन की चिल्ले की आवाज़ नहीं लगाई आपने? ये आवाज़ लगाई माशाल्लाह। आवाज़ लगाई। कुछ लोग तैयार हुए? नहीं आपके साथ कुछ साथी चले? 1 दिन 2 दिन? नहीं, एक भी नहीं चला। आपने मेहनत की, करनी चाहिए। आप मुतासिर क्यों हो गए? हमारे जहनों में किसी से नाउमीदी काहे को करनी चाहिए? मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह खिड़कियां जब लगवाते थे तो कहते थे कि देखो इस साइड पर खिड़की लगाओ, इसलिए कि यहाँ यूरोप के लोग आएंगे, गर्मी ठंडी वाले लोग आएंगे। हालांकि तब इतना मजमा नहीं आता था, लेकिन पूरी उम्मीद बात होती थी। हम भी पूरी उम्मीदों के साथ, इसलिए कि काम तो अल्लाह का है और हिदायत भी अल्लाह ही देंगे। हम तमाम को इज्तिमा में अल्लाह ही लेकर आए, तो इनको भी तौफीक अल्लाह ही देता। चलो माशाल्लाह। आपकी दूसरी जमात थी ना, यहाँ कुछ लोगों को लेकर आए? आए सर, कितने? 1-2 साथी और आ रहे हैं। अभी कितने आए? 2 साथी आए। 2 अपने पास रखना, हाँ, और आज पूरे दिन भर का निजाम करके इनको बुलाने की फिक्र कर लेना। सब जगह इज्तिमा की दावत दी ना? हर जगह। कितना पैदल चले? 132, माशाल्लाह। ज़्यादा से ज़्यादा कितना चले? 13 किलोमीटर। अच्छा माशाल्लाह। सब साथी पैदल चले? हाँ सर, माशाल्लाह। सामान लेकर चलते थे? तो ऑटो थी, ऑटो। ऑटो लेकर गए? अच्छा माशाल्लाह। बाकी सब पैदल चलते थे? माशाल्लाह। बहुत अच्छा। आपको क्या फ़ायदा हुआ?
यही के जोन में ये हर मतलब इंशाल्लाह 3 दिन जो हमारा लगेगा वो जोनों के एतराफ़ के अंदर लगेगा। और अंदर से बहुत दिल हाँ रोने जैसा कि ये उम्मत का हाल है कि ज़्यादातर जिस बस्ती में हम जा रहे थे लोग जुम्मा से बहुत दूर है। ये पूरे गांव में एक बड़ा उधर बस्ती है हमारी, उसमें 15 मकानात है। एक घर भी ऐसा एक मर्द भी ऐसा नहीं है कि वह जुम्मा के लिए जाता होगा। तो देखो सुनो ये बात, बहुत रोने की जैसी अंदर से बात आई कि लोग अपनी कारगुजारी सुना रहे। हमारे बस्ती में होते हुए भी कोई नमाज के लिए नहीं आता तो कितना हमें डर लगता है। ये लोग तो सालों भर से कि ऐसी लोग जहालत की भर की ज़िंदगी गुजारते हैं कि जुमा से इनकी हाँ कि जुमा से भी लोग दूर है, तो दूसरी नमाज की तो बात कहाँ हम करें। आपकी पूरी जमात ने ये तय किया कि आइंदा 3 दिन की जमात है ऐसे इलाके में जाएगी। हर भाई इनकी जमात के कौन कौन साथी है? आप सबने भी तय किया है अपनी 3 दिन की जमातें वहाँ जाएगी, 2.5 घंटे भी वहाँ लगेंगे, दूसरा गश्त भी करेंगे, करीब में होगा तो करेंगे इंशाल्लाह। आप बात मस्जिदों में अब नहीं करना। अब ये जोनों की जमात के जरिए से माशाल्लाह एक फिक्र आई है, तो हमारा पूरे साल भर का निज़ाम हम ऐसा ही करेंगे। चलो बहुत अच्छा माशाल्लाह। एक बस्ती है गढ़ड़ा, हर साल जुमात को वहाँ से निकालते हैं, मगर इस साल माशाल्लाह हमारे साथी ने वहाँ पहली मरतबा जुमात क़याम तो करते हैं मगर वहाँ से निकाल देते हैं। इस मरतबा क़याम भी हुआ और निकाला भी जाए माशाल्लाह। यही होता है, हम जाते रहेंगे तो लोग मानूस होंगे, इनके सामने बातें आएगी तो अल्लाह उनके दिलों में ये दावत की दीन की मेहनत की हिम्मत डालेगा, फिर हमको क़याम करने देंगे। और जाते थे हम के अंदर वाड़ी के अंदर वहाँ से मेरे मुलाकात हुई माशाल्लाह। ऐसा नहीं, पहला गांव ये है, इतने मकान थे, इतने बालिग मर्द थे, उसमें से इतने लोगों को दावत दी, इतने नमाज के लिए आए, इतने तालीम में, ऐसी पूरी कारगुजारी सुनो। तो माशाल्लाह पहला हमारा गांव झादरा था, झादरा के अंदर माशाल्लाह 17 मकान है। वहाँ सब जगह माशाल्लाह सब दावत घर के अंदर पहुँच गई माशाल्लाह। तो नमाजी वहाँ 5-6 नमाजी होते थे माशाल्लाह। कितने घर थे माशाल्लाह? कितने घर थे? 17 घर माशाल्लाह। कितने आदमी थे? तो आपको पूरा बतलाना पड़ेगा, बुक नहीं लाए। चलो तो सबको पहुंच गई चलो फिर झादरा से हम गए। जिन देहातों में मस्जिद मदरसा नहीं था वहाँ आपने कहाँ कायम किया? हमारे घर के अंदर कायम किया, एक ही दिया था, एक ही दिया था, टेंट लेकर गए थे। इसलिए आपको गांव भी नहीं मिल सकते, इसलिए कि आपके पास तो रहने की जगह ही नहीं है, टेंट ही नहीं है, तो आपको वो देहात मिल ही नहीं सकते कि जिसमें मस्जिद मदरसा न हो। इसलिए कि मस्जिद मदरसा नहीं होवे, वो उन लोगों को मिलेंगे जिनके हाथ में टेंट हो। अरे बराबर है ना, टेंट है तो फिर आदमी हर बस्ती में घुसेगा, और टेंट नहीं है तो फिर मकान जहाँ कयाम करने की जगह है वहीं जाएगा। आपको टेंट लेके जाना चाहिए ना, क्यों नहीं गए? पर फिर भी आप टेंट लेके तो जाते, आपके पास टेंट है आपकी मस्जिद में, तो फिर ले जाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आगे। टोटली कितने लोगों की मुलाकात की पूरे सफर में? 300-400 आदमी की माशाल्लाह मुलाकात हुई होगी। और कितनी जगह अजान नमाज जिंदा हुई? सब मानुस जगह ही गए थे। भैया कौन सा जोन था? तो बीला जोन में तो मानुस हमारी मेहमान जमातें भी जाती है, फिर आपको तो जोन के लिए जमात बनाई थी ना? नहीं वो 4 मकान 5 मकान। देखो, जोन की जमात से मुराद क्या है कि जहाँ ऐसे लोग हैं कि जिनके कानों में अल्लाह रसूल की बात नहीं पड़ती, जहाँ मस्जिद नहीं, मदरसा नहीं, 5 मकान 10 मकान 20 मकान, वहाँ जहाँ मस्जिदें हैं और हमारी मेहमान जमातें जाती है, वो जमातें जोन की नहीं कहलाती। चलो यहाँ कुछ लोगों को लेकर आए, कितना? और बाकी बस्तियों से कितने आए टोटल?
25,000 आदमी आ गए कि गिने नहीं? अरे भाई अपनी कमाई को तो आदमी गिन के लाता ही है, ऐसा क्यों करते हो? एक जिम्मेदारी के साथ आप गए थे, कुर्बानी दी, तो भाई टोटली इस बस्ती के इतने, इस बस्ती के इतने, उनको अपने करीब बिठाते, अपने साथ रखते। अब मानुस है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी मेहनत से आए तो थोड़ी खैर खबर लेते, उनकी तश्कीलें करते, तो सब मानुस लोग चिल्ले की 4 महीने की, उनमें से कोई आदमी 4 महीने जाता, उस इलाके की बुनियाद बनता, वहाँ मस्जिद व जमात कायम होती, बहुत बड़ी खैर वजूद में आने का आपको जरिया बन जाता। अब इनको अपने साथ रखना। चलो आगे आ जाओ और जमात आ जाओ। हमारी भावनगर जोन में जमात चली, कुल 12 साथी थे और 5-4 महीने वाले थे और 4 साथी चिल्ले वाले थे और 3 फुज़लाए किराम थे जो मकामी थे भावनगर के। और कुल 17 गाँव में क़याम किया और उसमें से 3 गैर मानूस मस्जिद में क़याम किया जो पहली मरतबा हुआ, और कुल 6 जगह पर पहली मरतबा क़याम हुआ। आपको किसी ने रोका तो नहीं ना? नहीं रोका नहीं। देखो माशाल्लाह, ये हमारी बात है कि मस्जिद में पहले हम दाखिल हो जाए, पहली मरतबा 3 जगह, हालांकि गैर मानूस का लफ्ज भी निकाल दो, कोई मस्जिद भी और कोई आदमी भी, कोई बस्ती भी गैर मानूस समझ कर हम न जावे, हम तो ये समझ कर ही जावे कि सब मानूस है। अगर फिर उनकी तरफ से कोई बात आती है कि भाई यहाँ मत रहो, तो ठीक है, मस्जिद के बाहर चले जाएंगे। मस्जिद के बाहर भी अगर मना करे, थोड़ा और दूर चले जाएंगे, मुसलमानों की आबादी के करीब में रहेंगे, वहाँ पर भी नहीं ठहरने देवे तो किसी किनारे पर ठहरेंगे। लेकिन हमारे जहनों में ये हो कि ये मस्जिद में दाखिल नहीं होने देंगे। माशाल्लाह 3 मस्जिदों में क़याम किया है ना। कुल 43 गाँव में मेहनत की और 17 गाँव में क़याम किया। 4 जगह पर टेंट कायम किया और 5 जगह पर छप्पर में रहे, यानी टेंट निकाल सकते लेकिन छप्पर मिल गया, और बाकी जगह पर घरों में क़याम किया। और कुल 1114 मुलाकात हुई माशाल्लाह माशाल्लाह। और 10 जगहों पर मर्दों में जोड़ किया और 11 जगह पर मस्तूरात में जोड़ किया। और तालीम मस्तूरात को कहाँ जोड़ करते थे? और घर में माइक साथ में था और दूसरे कमरे में रहते बैठे थे माशाल्लाह, पर्दे के एहतमाम के साथ माशाल्लाह। और 7 जगह पर मकतब कायम किया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जहाँ मकतब नहीं था, नहीं था वहाँ पर मकतब। कैसे कायम किया जरा सुनाओ ना सबके सामने। इब्तिदा में बस्ती में जाते थे और वहाँ क़याम किया। यहाँ एक तो गैर मानूस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह मकतब शुरू हो गया। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे, 15-20 बच्चे थे कि हम गए वहाँ पर, वो आते थे, बैठते थे, शाम को जमा किया सबको और बिठाया और सब बच्चे आने लगे, उनको कलमा शरीफ सिखलाया, तो कलमा पढ़ाया और बस्ती वालों को जोड़कर ये फिक्र दिलाई कि भाई ये बच्चे हैं, अफराद ये बहुत कीमती है और इनको किस तरह उनकी ज़िंदगी में दीन आ जाए, कलमा आ जाए और उनकी अपने लिए फ़ायदा होगा। उनको तरगीब भी बहुत सारा समझाया और उसके बाद उनको ये फिक्र, उन्होंने कहा कि भाई अब कुछ शुरू कर दें, और उनको फिक्र दिलाने के बाद उन्होंने फिक्र की हर जगह पर कि भाई कुछ मकतब का निज़ाम शुरू कर दिया गया। तो मुदर्रिस कहाँ से मिले? मुदर्रिस अल्हम्दुलिल्लाह भावनगर से मिल गई, बाज़ जगह पर आपने तहकीक करके ठीक करवाया, माशाल्लाह। देखो ये कितनी अच्छी बात है, पहले बच्चों को जमा किया, उनको कलमा सिखलाया, फिर इनके माँ बाप को बुलाकर इनको बताया कि देखो कितनी अहम ये ज़रूरत की चीज़ है, और फिर उन्होंने खुद ने भावनगर से मुदर्रिस को तय कराकर अपने हाजिरी में मकतब को शुरू करा दिया। अब ये क़यामत तक काम चलता रहेगा माशाल्लाह। और 80 साथी नमाज पढ़ रहे हैं हमारे साथ, और बाद साथी गांव में जाते थे तो सुबह से लेकर शाम तक रहते थे, और ऐसे भी अफराद बहुत सारे थे कि सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथ रहते थे। अच्छा, इसमें किसी जगह अजान ना होती हो, नमाज जमात के साथ नहीं होती, ऐसी कहीं आपने जिंदा करवाई? 3 जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान नमाज माशाल्लाह। किस तरीके से और कहाँ करवाई? सबसे यहाँ पर मकतब शुरू किया, वहाँ मुदर्रिस को मुकल्लफ बना के बाद वो हर नमाज पढ़ा और साथियों को छोड़कर एक जगह तय कर दी कि वहीं पर नमाज वगैरह पढ़ा। आपकी हाजिरी में शुरू हो गई। देखो ये काम हो रहा है, यानी जहाँ मकतब, अब जगह है मकतब और नमाज नहीं होती थी, वो नमाज की तरगीब दी, उसी मुदर्रिस को आमादा किया और लोगों को अपने हाजिरी में बुलाकर नमाज शुरू कर। अब आज 5 आदमी नमाज पढ़ेंगे, कल 10 आएंगे, परसों 15 आएंगे,
ऐसी कितनी जगह आपने जिंदा की? 3 जगह पर, और माशाअल्लाह। 2-3 जगह पर और इरादा किया है साथी, इंशाल्लाह उनके भी हम पीछे रहेंगे तो किस तरह वहाँ भी शुरू हो जाए कब करोगे ये इंशाल्लाह, आइंदा साथी? इज्तिमा के बाद इंशाल्लाह। हाँ फौरन, यानी इज्तिमा पूरा होते ही कल या परसों आप उसकी फिक्र में लग जाओ, इसलिए कि बगैर नमाज और बगैर अजान के कोई बस्ती ऐसी हो, इसमें तो शैतान का तसल्लुत होगा। नमाज का छोड़ देना सबसे बड़ा गुनाह है, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाते हैं। अब आदमी नमाज पढ़ेगा, ईमान इस्लाम और कुफ्र के दरमियान के अंदर मिलाने वाली चीज तो नमाज है, तो नमाज तो पहले जिंदा करनी चाहिए। माशाअल्लाह, अब इसकी फिक्र कर लेना। और इज्तिमा में भी अभी 25 साथी आ गए, हम भी और दूसरे साथी आ रहे हैं। 25 साथी उनको अपने साथ रखोगे, खिलाना पिलाना, उनको तालीम में बयानात में बिठाना, उनका जहन बनाना, फिर उनके तासुरात पूछना कि भाई माशाल्लाह आपके इज्तिमा में 2 दिन की शिरकत से क्या फ़ायदा हुआ, और फिर उनको तरगीब देकर हिम्मत अफजाई की बात करके इनको कहना कि आइंदा तुम्हारे वहाँ जहाँ पर भी इज्तिमा हो, ऐसी दीनी मजलिस हो, वहाँ लोगों को शरीक करना। कितना पैदल चले? 75 किलोमीटर। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। चलो अल्लाह कबूल फरमाए। और आ जाओ जमात भाई। તળાજા ઝોનની જમાત आप तो हज में थे ना इस टाइम, क्या नाम? જેમાં 3 સાથી 4 મહિનાવાળા હતા અને 5 સાથી ચિલ્લાવાળા હતા. અમે પાવટી ગામથી ચાલુ કર્યું હતું, જ્યાં 120 મકાન હતા. कितने देहात आपको दिए गए थे? 46 दिया. उसमें 5 घर से ज्यादा वाले कितने और 5 मकान से कम वाले? उसमें 5 घर से ज़्यादा वाले थे. 15 मकान। उसमें से हमने 11 में क़याम किया, और उसमें से एक पावटी से नकद साथी लिया हमने चिल्ले के लिए, जो अभी हमारे साथ चल रहा है. और उसमें मुलाकात हुई पावटी के अंदर 160-70 से करीब मुलाकात हुई, क्योंकि वहाँ पावटी के अंदर मस्जिद है, उसमें नमाज भी होती है, मदरसा भी होता है, और उसके अंदर वाड़ी विस्तार है, तलावड़ी विस्तार है और प्लॉट विस्तार है. 3 विस्तार है उसके अंदर. उसके अंदर दूसरा गज भी होता है तलाजा वाले का, हमारे गांव से दूसरा गज भी होता है. वहाँ की भी मुलाकात हुई सब जगह. और उधर से हम दूसरे गांव में गए थे, साकड़ा सर, पसवी है, वहाँ पर 1-2 मकान है. ये जो जिस मस्जिद मालिक मस्जिद में आप ठहरे थे, वहाँ तालीम का हल्का लगता है? वहाँ तालीम का भी लगता है, मशूरा भी होता है. मस्जिद हम जमात भी है? मस्जिद में नहीं ठहरे थे उधर. क्यों? उधर हम प्लॉट के अंदर ठहरे थे, क्योंकि मस्जिद के जो प्लॉट में दूसरा गश्त होता है ना, तो उधर हम ठहरे थे. उधर इससे पहले भी वो साल भी हम ठहरे थे, जहाँ पर टेंट लगाया था. के मकान वही है? हाँ वहीं पर है, दोनों जगह पर है. आधे मकान, मतलब इधर 50-60 के करीब है, उधर भी 50-60 के करीब मकान है. माशाल्लाह। और सबकी मुलाकात हो गई? हाँ, सबकी मुलाकात हो कितने गई. दिन क़याम किया था? उधर हमने 5 दिन क़याम किया था. अच्छा, दोनों प्लॉट के बीच में हाँ, टेंट लगाकर? टेंट लगा नहीं, अभी तो अगले साल टेंट लगाया था. इस साल एक साथी का मकान मतलब बनना शुरू हो गया था, मतलब जैसा कि अभी मकान बना हुआ था, उसके अंदर कुछ लगा नहीं था, उधर हम ठहरे थे. साथी ने बोला था इधर ठहरो. टेंट लगाया था उधर, छत के ऊपर लगाया था. अच्छा, चलो। उधर से हम दूसरा रूट फुलसर के करीब गए. हम फुलसर में 2-3 मकान थे, उसमें हम वाड़ी के अंदर है. जहाँ पर मकान था वहाँ पर कोई रहता नहीं था, तो हम वहाँ पर रहे. और उधर से हम 4 जगह हम मुलाकात के लिए गए थे. और 700 ये मुलाकात करने के लिए कब जाते थे और वहाँ क्या अमल करते थे? हम 4:30 के करीब निकलते थे कि एक जगह पे कोई एक गांव में जाते थे जहाँ मतलब असर की नमाज हो, वो साथी के साथ नमाज हो उनके घर में? हाँ, उसके घर में. हाँ, हाँ, यही हिकमत है कि भाई ऐसी जगह जहाँ 2-3-4 मकान है, मस्जिद मदरसा नहीं है, तो ऐसे वक्त के अंदर जावे जहाँ बैठकर बात भी होवे और वहीं अजान देवे और वहीं नमाज पढ़े और हमारे साथी के साथ इनके मकामी मर्दों को भी नमाज पढ़ावे. ऐसा ही किया ना? हाँ. माशाअल्लाह. 2 गांव देते थे, दो लोग को भेजते थे,
वहाँ पर एक गांव में असर पड़ता है, फिर दूसरे गांव में मगरिब। फिर उन सबको बिठा कर पहले हम खुद कलमा पढ़ते थे। जैसे दो साथी है तो दो साथी पहले कलमा पढ़े, फिर उसको ऐसा नहीं लगेगा वो मेरे को पूछ रहा है, इसके लिए फिर उसको भी हम पूछ लेते कि भाई तुम भी पढ़ो अभी कलमा, तो वो भी पढ़ते थे हमारे साथ में कलमा। देखो ये हिकमत अमली है। अब डायरेक्ट उनको पूछोगे बेहतर है कि अपने पढ़ लिया, अब उनको पूछेंगे तो उनको कोई एतराज नहीं होगा। माशाल्लाह। तो ऐसे कितने लोगों को कलमा पढ़ाया होगा? मतलब सारे जब कहीं पर भी मुलाकात जाते थे हमारे अमीर साहब भी बोलते थे तुम ये ऐसे ही काम करना है हमें, तो हम सारी जगह पे ऐसे ही काम करते थे। सबको कलमा याद था? हाँ कहीं सिखाने की जरूरत पड़ी? हाँ, एक दो गांव में सिखाने की जरूरत पड़ी थी। सिखाया इनको? हाँ सिखाया बिल्कुल। और जो भी गांव में जाते थे उधर बाजू में ही मस्तूरात मतलब पर्दे के अंदर बैठी रहती। जब हम बाहर खाटला बिछाकर हम बात करते थे वो साथी को लेकर, तो घर के अंदर मस्तूरात बैठी होती थी, तो वो भी बात हमारी सुनती थी, जिससे वो भी मायूस हो इसके लिए, मायूस हो। उसमें 16 मकतब है, जिसमें ये साल के अंदर 2024 से लेकर 25 तक 10 मकतब कायम हुए। और हमने जो हमारे इलाके के जो भावनगर से जो मौलाना चला रहा है मकतब, उसको बोला है 2-3 गांव के अंदर अभी मकतब कायम करना है। और जैसे नीचा कोटड़ा है, दयाल है, फिर 2-3 गांव में और करना है। फिक्र अभी कर लेना। उसको मौलाना को बोला है, मौलाना बिलाल साहब को, उसने भावनगर भी बोल दिया है। अच्छा माशाल्लाह। और 4 जगह जोड़ किया हमने, और एक साथी नकद लिया था। अच्छा, कुछ गांव वालों को अपने साथ खाने के लिए बिठाते थे? जहाँ पर जोड़ करते थे उधर हम मतलब दावत रखते थे खाने की। और अक्सर जगह जहाँ पर हम साथी को जो भी आ जावे, और जो भी साथी को सबको दावत देते थे ऐसे ही कि सब हमारे साथ खा लेना, दोपहर का है, शाम का है। कितना एक्स्ट्रा बनाते थे? हम 2-3 लोगों का एक्स्ट्रा होता ही था, अक्सर एक्स्ट्रा होता था। कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हमारा कम पड़ा हो माशाल्लाह। और हम बाजू में जो मकान है कि दूसरी जगह भी दे देते थे, जिसे वो लोग भी खा ले जो नहीं आते थे वो। और 741 मुलाकातें हुई, और 99 किलोमीटर चले, 99 किलोमीटर 46 गांव में मुलाकात के लिए गए थे हम। उसमें 11 में हम क़याम किया है। उसमें 6 मस्जिद है, और उसमें 4 मानूस, 10 मस्जिद है, उसमें 4 मानूस नहीं है। और 3 जगह हमने टेंट लगाया। 4 मानूस नहीं है उस मस्जिद में ठहरे था? उसके करीब मतलब उसके करीब हमारी भी मस्जिद थी। जैसे ठड़िया गांव के अंदर 2 मस्जिद है। अच्छा। हाँ, एक हमारी मस्जिद है जो हम काम हो रहा है, और दूसरी भी एक मानूस नहीं है, उसमें भी काम नहीं हो रहा है। फिर भी हम मुलाकात के लिए गए थे उसके पास भी मस्जिदों में। हाँ, नमाज पढ़ी? हाँ नमाज पढ़ी। 2-3 साथी जाते थे मुलाकात के लिए। जैसे कि असर के क़याम नहीं कर सकते थे वहाँ पर पहले हमने ना बोल दिया था कि आपस में लड़ाई होती है, मैं ना बोला है, मैं जमात को लेकर पूछा नहीं था। हम खुद गए थे, जो प्रमुख है ना उसके पास। तो यही हुआ ना, पूछने के लिए गए ना? हाँ, पूछने के लिए गए थे। नहीं तो आपको तो पहले मस्जिद में दाखिल हो जाना है। ये हमारी बात तो 15 साल से चल रही है कि पहले गैर मानूस होगी, पहले मना भी किया होगा, लेकिन आप उस मस्जिद में दाखिल हो जाओ। अगर वो कोई मना करे तो प्यार मोहब्बत से बहुत सी जमातें हमारी चली। अब इमाम साहब आए, तुम यहाँ ठहर नहीं सकते, तो इन्होंने कहा भाई हमारा खाना पकड़ा है। अच्छा, खाने के बाद चले जाना। तो जोहर के बाद फिर इमाम साहब आए, तो सब दुआ जिक्र में बैठ गए, तालीम में बैठ गए। इमाम साहब आप अमल पूरा थी गया, पछिया में निकल गए। फिर शाम हो गई, फिर इमाम साहब आए या कोई साथी आए, वे अब कैसे निकलेंगे, रात का वक्त करीब है, कहाँ जाएंगे, रात का क़याम करने दो। अच्छा चलो सुबह तक ठहर जाओ। यूँ करते करते मस्जिदों का क़याम शुरू हो। अब पहले दिन ऐसा हुआ, पहली मरतबा, जब दूसरी जमात जाएगी तो कोई ना कोई हामी खड़ा हो जाएगा कि यार ये तो गुज़िश्ता भी आके ठहरे थे ना, ठहरने दो, और क़याम शुरू हो गया। यानी हमारे लिए क़याम करने की कोई परमिशन तो नहीं होती, तो अल्लाह का घर है। बस इस तरीके, इसलिए कि जैसे सबका हक है नमाज पढ़ने का, हमारा भी हक है। तो हम प्यार मोहब्बत से, अगर किसी जगह लड़ाई झगड़े की नौबत आवे और बहस मुबाहिसा हुए तो वो नहीं करना, लड़ाई भी नहीं करनी, झगड़ा भी नहीं करना, बहस भी नहीं करनी, प्यार मोहब्बत से हट जाना। लेकिन जब तक कि कोई हमको छेड़े नहीं और कोई कुछ कहे नहीं, हमारे जहनों में
कि भाई बहुत मुश्किल है, नहीं देखेंगे, ठहरने नहीं देंगे, कुछ कोई बोलेगा, ऐसा थोड़ा होता है। चलो कोई बात नहीं, अब आइंदा जाना ऐसी तमाम मस्जिदों को कवर कर लो। अल्लाह करे यानी बहुत से इलाकों में 50 मस्जिदें खुल गई और क़याम की इजाज़त हो गई और वहाँ से चिल्ले 4 महीने की जमातें शुरू हो गई। वरना आहिस्ता आहिस्ता इतनी कि अभी तक मस्जिदों में क़याम करने की इजाज़त न होवे और हम क़याम भी न करें तो ये मस्जिदें कब खुलेगी, अतराफ के अंदर गश्त कब जिंदा होगा, इनकी 3 दिन की चिल्ले 4 महीने की जमातें कब जाएगी। हमारी जिंदगी में सब हो जाना चाहिए ना, अरे बोलो, बल्कि 6 महीने में 1 साल में आइंदा 25 बस्तियां हमको ऐसी जो गैर मानूस थी मानूस होगी, दूसरे साल के अंदर दूसरी 25, तो 500 बस्तियां भी होगी तो भी अल्लाह करे 5 साल 10 साल में आबाद हो जाएगी। ये तो बहुत स्लो हमारी गाड़ी चल रही है। अब आइंदा 3 दिन की बरकत से ये तमाम मस्जिदों को खोल देना, ठीक है। आपकी जमात जाएगी बराबर 3 दिन इंशाल्लाह। कहाँ जाएगी? जाती है ठड़िया गांव के अंदर जाती है हमारी जमात। ऐसी तमाम गैर मानूस जगह में ही जाएगी अब हाँ, इंशाल्लाह, ठीक है। कितना पैदल चले? हम पैदल 99 किलोमीटर 99 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ कुछ साथी को लेकर आए? हाँ, साथी हमारे जमात की पूरी साथी इधर ही है। नहीं, उस बस्ती से कुछ लोगों को लेकर आए? 160 साथी करीब आए। कल हमने फोन किया था 160 साथी आए? हाँ। माशाअल्लाह। उनको कहाँ ठहराया है? उसको पिंडाल के अंदर ही ये सब होगा। मानूस थे कि गैर मानूस है? मानूस है, उसमें गैर मानूस भी है। अच्छा, ऐसे लोग हैं जो पहली मर्तबा इज्तिमा में आए हो हाँ है, बहुत सारे लोग हैं। तो उनको करीब में करना, उनको पूरे अमाल बतलाना, अपने करीब इनको खिलाना पिलाना, इनको जहन बनाना और माशाल्लाह इज्तिमा का चस्का लग जावे और आइंदा हमेशा इज्तिमा में दूसरों को लेकर आवे, ऐसी मेहनत करके जाना। इंशाल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह। चलो और भाई सीहोर वाले आ जाओ। भाई ये कहाँ जा रहे हैं? ओ मेरे भाई, अब तो पूरे साल का निजाम बनाने का वक्त आ रहा है। हमारी जमात में ये इनकी तरफ पलट गया। हाँ। हमारी जमात में 8 साथी थे, उनमें 4 महीने लगाए हुए 6 साथी थे और चिल्ला लगाए हुए 2 साथी थे और टेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ था। तो टेंट में 4 जगह पे क़याम हुआ और 5 दिन क़याम हुआ और टेंट के अलावा किसी के मकान में और गाय भैंस के तबेले के अंदर 4 जगह पर क़याम हुआ। उसमें 7 दिन हम ठहरे और तकरीबन 135 किलोमीटर हम चले। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 19 किलोमीटर चले। माशाल्लाह। कब चले थे? ये नौगढ़ उधर से गारियाधार। यानी कितने बजे सुबह में निकले थे? 6:30 बजे। ओहो, कितने बजे पहुंच गए? 11 बजे। माशाल्लाह। सब साथी पैदल चले? हमारे साथ रिक्शा थी तो एक साथी रिक्शा में अच्छा, जाता, बाकी सब पैदल साथ चलते थे। और हर जगह पे मकतब मस्जिद मदरसे की तरतीब हम जाते तो बना लेते, पूछ लेते वहाँ पे। उनमें तकरीबन 5-6 मोड़ में बैठ जाओ तो बहुत अच्छा। आपके लिए तो कुर्सी रखी है। उनमें तकरीबन हर जगह पे हम पहले जाते तो कितने बालिग मर्द है, कितने मकान है, वो पूछ लेते। माशाल्लाह। देखो ये काम की तरतीब है, सीखने की जरूरत है। हर जगह कितने बालिग मर्द है, कितने मकानात है, ये पूरी तहकीक कर रहे हो। मानुस कितने हैं, 4 महीने वाले कितने, चिल्ले वाले कितने, 3 दिन वाले कितने, ये मस्जिद वाला जमात कितनी है, ये पूरा एक निज़ाम हमारे सामने होगा तो काम करने के लिए आसानी होगी माशाल्लाह। और मकतब मस्जिद और मदरसा होता तो उनको थोड़ा बच्चों की मुलाकात करते, मौलाना के साथ जाते, मौलाना को बोलते कि और कोई बच्चे हैं गांव के अंदर जो नहीं आते पढ़ने के लिए, मौलाना को लेकर जाते। ऐसे तकरीबन 3 गांव के अंदर ऐसा हुआ कि भाई मौलाना को साथ में लेकर जाते, मौलाना ने बोला कि हम मुलाकात करते, वो नहीं आते पढ़ने के लिए। बच्चों की मुलाकात करते, बच्चों की, उनके माँ बाप की, उनके जो वाली की भी मुलाकात करनी असल तो ये है जी। ऐसे समढ़ियाड़ा के अंदर हमने 6 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अगले दिन मुलाकात की, दूसरे दिन आ गए और सबको हमने नाश्ता भी कराया।
तो मौलाना ने कहा कि भाई इनकी मुलाकात में बहुत महीनों से कर रहा था लेकिन ये नहीं आ रहे थे, अभी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मस्तूरात के अंदर जोड़ तो एक जगह पे जोड़ हुआ पालीताना के अंदर, उसके अलावा तकरीबन हम मुलाकात के लिए निकलते हैं तो पहला तो यही सोचते कि भाई हो सके तो घर के अंदर बैठकर मुलाकात हो, सबसे पहले यही सोचते। और ऐसे 75 घर के अंदर मुलाकात हुई कि जिस घर के अंदर मस्तूरात ने भी बात सुनी पर्दे के अंदर, और बहुत सारी जगह पे पर्दे के लिए भी मस्तूरात को उभारा और उसकी फिक्र दिलाई कि पर्दा हमारे लिए ज़रूरी है, उस पर्दे की अहमियत बताई। और बच्चों की तरबियत के बारे में कि भाई हम सोचते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे नमाजी बने, हमारे बच्चे कुछ पढ़े, तो इसके लिए हमें नमाज पढ़नी पड़ेगी। तो इससे माशाल्लाह बहुत मर्दों के अंदर भी फ़ायदा हुआ, मस्तूरात के अंदर भी वो भी मुतासिर हुए। इसके अलावा हम अभी पिछले दिनों के अंदर गुंदाड़ा के अंदर मुलाकात के लिए गए थे, तो वहाँ सब मुलाकात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद एक मकान में गए तो वहाँ पे 2 दिन पहले उनकी एहलिया को डिलीवरी हुई थी, बच्ची की पैदाइश हुई थी। तो हम लोगों ने बोला कि भाई आपने बच्ची के कान में अजान और इकामत दी कि नहीं दी? तो बोले वो क्या होता है? तो हमने कहा कि भाई अजान और इकामत देनी चाहिए, हम मुसलमान हैं। तो बोले आप लोग दे देंगे? हमने बोला जी हम दे देंगे। तो फिर वो 2 दिन की बच्ची को लेकर आए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथी ने एक कान में अजान दी, दूसरे कान में इकामत दी, और वो सब घर वाले रोने लगे कि भाई हम मुसलमान हैं और ये सब हमको करना चाहिए। इसके अंदर भी उन लोगों को बहुत मुतासिर हुए। और 48 गांव के अंदर हम लोगों ने मुलाकात की। या 5 मकान से कम थे? नहीं, सब मिला के 48 नहीं, अच्छा, यानी 5 मकान वाले और जिसमें कम थे दोनों मिला कर सब मिला के। चलो माशाल्लाह, अच्छी, और 960 लोगों की मुलाकात हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी मुलाकातें हुई। और उनमें 35 लोगों को हमने कलमा सिखाया। हम लोग मुलाकात के अंदर जाते हैं तो जैसे अभी पहली जमात वालों ने सबने कारगुजारी सुनाई, हम सब कलमा पढ़ते हैं और कलमे की अहमियत उन लोगों को बताते हैं। और थोड़ी देर बाद उनको भी बोल के भाई आप भी कलमा हमको ज़रा सुनाओ। तो बाज़ लोग तो शर्मी के अंदर ना बोल देते, लेकिन कई लोगों ने हमको कलमा सुनाया जिनको किसी को बिल्कुल नहीं आता था, किसी को आता था उनको गलती थी। ऐसे 35 आदमी हैं माशाल्लाह। और 30 आदमी को हम लोगों ने साथ में हमारे साथ नमाज पढ़ाई। कहीं अजान नमाज जिंदा करवाई? किसी बस्ती में ऐसा कि अजान नमाज नहीं होती और मुसलमानों की तादाद है 8, 10, 15, तो वहाँ कोई जगह तय करके कि भाई ये तुम्हारी मस्जिद की जगह है या तुम्हारी नमाज पढ़ने की जगह है, ऐसा कुछ तय हुआ? ऐसा हम चोरवटला के अंदर थे तो वहाँ पे हमारे साथियों ने माशाल्लाह जगह ली हुई है, हमारा इबादत खाना है, लेकिन गांव लोगों के अंदर आपस में इख्तिलाफ की वजह से वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। 2-3 साथी फिक्रमंद है, तो हम लोगों ने माशाल्लाह जोड़ किया था। गांव वाले सब आए भी थे, 5-6 आदमी ने हमारे साथ खाना भी खाया। उन लोगों के सामने हमने ये बात रखी अजान नमाज की। वो बोले ये तबलीग वालों का है, हम यहाँ पे नहीं भेजेंगे, ऐसी सब बातें हुई। फिर हमने बोला कि भाई आप ये चाहते हैं कि नहीं चाहते कि हमको नमाज पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए? तो बोले हम तो चाहते हैं। बोले तो क्या करेंगे? तो बोले यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कब्रिस्तान में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर कब्रिस्तान में चालू करो। ठीक है, फिर आप लोग वहाँ पर जमा हो के वहाँ नमाज शुरू करो। तो शुरू हुई? हाँ जी, बस माशाल्लाह। हमारा तो काम होना चाहिए। अब यहाँ नहीं पढ़ते तो वहाँ शुरू करें, नमाज को फर्ज है ना। माशाल्लाह। और यहाँ कितने लोगों को लेकर आए? ऐसे मानुष साथी तो बहुत है, 150 नहीं, गैर मानुस को? गैर मानुष तकरीबन 60-70। गैर मानुस तो कोई है ही नहीं सुना, लेकिन फिर भी हमारी इस्तिलाह में हम उसको कि भाई जो नहीं आते थे, पहली मर्तबा आए या जिनके कानों तक आवाज़ नहीं पहुंची, ऐसे कितने लोग आए? 50 के करीब है। उनको अपने साथ रखना जी। और आइंदा ये दीन के दाई बन के जावे और कुर्बानी पर खड़े हो जावे, इसी मेहनत करके जाना। ठीक है, इंशाअल्लाह। चलो भाई, इसके बाद कौन जमात है?
हो गए माशाल्लाह। देखो भाई दोस्तों, ये हमारे पूरे जिले के अहवाल हम लोगों के सामने आए। ऐसे लोग भी आपको मिले कि जिनकी 60 साल की उम्र हो गई, जिन्होंने नमाज कभी नहीं पढ़ी। ऐसे लोगों के अहवाल भी हमारे सामने आए कि जिनको जुमा भी पता नहीं, नमाज तो अलग बात है, जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ सकते। ऐसे लोग भी आपके सामने आए कि जहाँ बच्ची की विलादत हुई और इनको अजान, नमाज, यानी जो हमारी बुनियादी चीजें हैं वो भी इनको मालूम नहीं। अब हमारे पूरे भावनगर के अंदर माशाल्लाह 2 दारुल-उलूम है और भावनगर में 4 महीने लगे हुए कितने साथी है? तकरीबन 2600 और चिल्ला लगाए हुए 8200 और उलमा 260। इतना बड़ा मजमा हमारा काम करने वालों का है, लेकिन हमारी 10 किलोमीटर के अतराफ की बस्तियों के हालात ये है। अब बोलो भावनगर जिले में बाहर के लोग आकर थोड़ी मेहनत करेंगे? कोई नबी आने वाले? ये तो हम सबको ही करना पड़ेगा। अगर हमारा ये मजमा इन देहातों में पूरे साल भर जाता और 3-3 दिन जमातों को लेकर टेंट लेकर जाते, तो बोलो ये बस्तियां आज आबाद हो जाती कि नहीं? एक मैं आपको सवाल पूछूं, गुज़िश्ता साल आप लोगों ने जो देहात लिए थे, ऐसे ही कारगुजारी के बाद आपको बिठाया था और किसी ने 1, किसी ने 2 देहात लिए थे, पूरे साल भर के अंदर आपकी कितनी जमातें वहां पहुंची? ये भाई भावनगर हल्का नंबर 1 ने कितने देहात लिए थे? 1 नंबर के साथी है? 1 नंबर के साथी है जी, कितने देहात लिए थे बोलो? चार 5 लिए थे। कितने देहातों में गए? 3-3 दिन की जमात, 1 या 2 मरतबा गए बस। अच्छा भाई, हल्का नंबर 2 के साथी है? 2 हल्का नंबर 2, जल्दी बोलो भावनगर वाले। 2 नंबर के साथी है? कौन है? अरे भाई 2 नंबर के साथी कौन है वो तो बोलो, आप भी तो हो। अच्छा, कितने देहात लिए थे आपने? 3 दिन के देहात हमने आपको बिठाकर हर हल्के और मस्जिद वालों को बिठाया था। उसमें 3 दिन की जमातें कितनी गई पूरे साल भर में? 3 दिन की जमात वहाँ नहीं जाती है, हम लोग यहाँ दूसरी मस्जिद है वहाँ लेके वहाँ जाते हैं। आपने जो देहात लिए थे वो तो 3 दिन की जमात के लिए लिए थे ना, उसमें कितनी जमात गई? नहीं गई। हल्का नंबर 3 भावनगर, भाई हल्का नंबर 3 बोलो ना जल्दी, कहाँ है आपने कितने देहात गुज़िश्ता लिए थे? 5, 4। कितनी जगह जमात गई? एक भी जगह नहीं गई। हल्का नंबर 4 कितने देहात लिए थे? 2। कितनी जगह जमात गई? एक भी जगह नहीं गई। अच्छा भाई, महुआ वालों ने कितने देहात लिए थे? महुआ वालों को भी हमने बिठाया था। बोलो भाई जल्दी बोलो, हल्का नंबर 1